focus on what I have to tell you. So now coming to the main thing, see, the main issue about this is that I'll be displaying my mistakes and vulnerabilities in front of you, but I'll be doing this so that you start feeling confident that okay, everybody, whether they are in the journey for 5 years, whether they have studied a lot, whether they have not studied a lot, everybody is the same when it comes to a certain knowledge level base, and everybody is a human being. They can commit mistakes, they can commit silly mistakes in the examination hall. I want you to feel this confident when you end up watching this discussion. Also, why am I telling you this? So that you cut me some slack. That okay, I gave the prelims without any revision, without any reading, without any mocks and everything. So do not hate me. Please do not hate me by seeing my mistakes and cut me some slack. That's it. With this, I'd like to present my paper to you, and please pay the utmost attention. I'll not take this session for very long. Even if I have to take it in two parts, it's okay. But please pay important focus. Please concentrate on what I'm saying. Each and every word will help you score some particular marks in this year's paper. That's a promise. Alright, let's begin. So that's the question number 1. See, this is my original paper, and I have what I have circled, what all I have done, which options did I cut initially, which options did I have doubt in, what did I eventually mark. Everything is given here, and this you will find somewhere written, which is how I evaluated my paper from some coaching keys. Okay, this you will find written on every particular question, the ones that I got correct, the ones that I got incorrect, everything. Okay, so now let's begin. Okay, so this was the first question that I attempted. Rapid financing instrument and rapid credit facility are related to the provisions of lending by which one of the following? So I read it. I marked rapid financing instrument. I marked the word rapid. I marked the word lending and credit facility. So this particular question was focusing upon rapid credit, rapid lending, and on the basis of PYQ's trend, I was sure that it is not going to be UNEP, because UNEP do not either directly finance, or if it does, it has nothing related to lending, credit facility, and moreover about rapid. So this was wrong. Asian Development Bank is something that UPSC has not been focusing upon. So this was also not to be the answer. I didn't know the answer. Let me be very specific here. I was clueless about it. Okay, I had no idea. So this is how I derived the answer. So first I cut the options A and C. Now I had severe doubts in option B and option D, because both these particular institutions, the IMF and the World Bank, are involved in a lot of lending process. This I know by my basic knowledge. Okay, now the doubt was whether to mark IMF or World Bank. Because I was focusing on the term rapid, I thought that IMF doesn't do rapid lending. What it does, it gives you certain criteria to follow, and if you are following them, then you'll get your loans. That is how I ended up marking World Bank, and I got this question as incorrect. Okay, is this a big issue? No, this is not a big issue. Why is this not a big issue? Because my thought process was correct. Because I did not commit a blunder in my thought process. Okay, and it's okay to get a few questions incorrect. Let's see the next question. With reference to the Indian economy, consider the following statements. An increase in nominal effective exchange rate indicates the appreciation of rupee. An increase in the real effective exchange rate indicates an improvement in trade competitiveness. An increasing trend in domestic inflation relative to inflation in other countries is likely to cause an increasing divergence between near and rear. Okay, now because I was not able to revise my static at all, I had again a lot of confusion in what should be the answer here. But now understand how the concepts work. It is saying increase in near indicates the appreciation of rupee. Okay, if I consider this to be correct, then the second statement, increase in rear indicates improvement in trade competitiveness. Near and rear might be two different concepts, but they work in a similar way. They tell you what is the position of your currency. So if rupee is being appreciated, if rupee is appreciating, it cannot lead to improvement in trade competitiveness. It will lead to decrease in trade competitiveness, because it is only when a currency depreciates that the competitiveness of trade, the competitiveness of exports increases. I have taught all these concepts in my economy lecture series, right? So which means that both of these options could not have been correct together. So what I did was I cut down A and I cut down D, because both of them had 1 and 2 together. So now I was left with 50-50 choice, and also a surety that third is going to be correct. So now I do not have to look at it at all. And what I had to focus on was 1 and 2. So
as I was not able to recall and I had to mark it at that particular point of time, because what I have taught you also is the same, that if you are down to two options, mark it then and there. Do not leave it for the second round, because else you'll end up wasting your time. Mark it then and there. And I marked 2 and 3, that the second statement is correct. However, I later came to realize that no, this is wrong, and I got my second question as incorrect. Okay, दो questions attempt किया अभी तक, दोनों गलत है. Okay, see, this is how I was even solving the question, that okay, if it is 50, if rupees 50, if dollar is 100, what is going to happen, and everything. I was even trying to derive a mathematical formula out of it. Okay, let's talk about the third question. With reference to Indian economy, consider the following statement. If the inflation is too high, see, I don't know if you're seeing this or not, but I have underlined and marked here too high. Reserve Bank of India is likely to buy government securities. Okay, see, I have even right there derived the answer. Okay, so this statement was incorrect. I marked it incorrect. As soon as I marked incorrect, I eliminated the other three options. Then I went back and checked if the other options are correct. So if inflation is too high, RBI is likely to buy government securities. No, if inflation is too high, RBI would want that people do not hold a lot of money. So what RBI will do is it will sell the government securities. So the first statement is incorrect. If the rupee is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollars in the market. Yes, this is correct. If rupee is depreciating, RBI will control the flow of a rupee and increase the flow of dollars in the market, and that is why it will sell dollars in the market. Please, if these concepts are not clear to you, I have explained them in immense detail, and that series is a hit because it has, I guess, nearly 15 to 20,000 views. Please watch the economy lectures if you are not clear about these concepts. It's very important because in economy there will be a very simple questions and you have to get them correct. They are the low hanging fruits. Okay, so the answer here is 2 and 3. So this was finally my opening run. I got the first question as correct. Okay, now the fourth question. With reference to G20 common framework, consider the following statements. It is an initiative by G20 together with the Paris Club. It is an initiative endorsed by the G20 together with the Paris Club. I saw this particular statement and I cut it. I marked G20 Paris Club and I cut it down because I knew that two organizations, if they appear in the examination anywhere, I'll cut it. Then second is it is an initiative to support low-income countries with unsustainable debt. This is a positive statement. It should have been correct and I marked it as correct. I didn't doubt it for a second. So what did I end up marking? I ended up marking 2 only. And this was incorrect because UPSC has always pointed in 2021's paper at least 3 to 4 times that wherever it uses the word endorsed, it is going to give a correct statement. But I did not had this observation. I did not apply this observation in this particular statement and I got it incorrect. So, wow, tricks failed. Oh my god, it's okay. Just relax. In some questions, the tricks are amount to nothing. They will fail in some particular questions and that's okay. That is completely okay. So, I got the third question as correct. Okay, so what did we learn from here? What did we understand from here? On the first page there were 4 questions. I attempted all the 4 questions and I got 3 correct and I got 3 incorrect and 1 correct. So what was my score at the end of these 4 questions? It was 0. Okay, so 4 questions are down and my score is 0. So should I start panicking in the examination hall that okay, where from are these questions coming? Oh my god, I do not know them. Will the tricks be applied or not? No, do not panic. There are 96 questions to come. Improve your focus upon those 96 questions. Okay, let's move ahead. So this is the next question, question number 5. With reference to Indian economy, consider what are the advantages of inflation indexed bonds. Inflation indexed bonds. Okay, so the first statement is government can see. Please keep noting how am I marking the statements. Government can reduce the coupon rates on its borrowings by way of IIBs. This should have been correct because this is an initiative by the government, and if it helps the government then it goes in line with the policy. So this should be a correct statement. I marked it correct. Second is IIBs provide protection to the investors from uncertainty regarding inflation. From any uncertainties. It is written here. Inflation indexed bonds. They are already indexed on inflation. So they are going to provide protection to the investors from uncertainty regarding inflation. This was the easiest statement and I directly marked it correct. The interest received as well as capital gains on IIB are not taxable. See now look at this. People say that these things do not work. I have told you
time and again in my 2020 and 2021 discussion that wherever you see as well as, not, it is similar to and not. I could have written this statement: the interest rate received and capital gains on IIBs are not taxable. So this statement converts to and not, and it is directly incorrect. And this particular trick ended up giving me my second correct question because the answer was 1 and 2. Are you clear about this? Okay. See, when I was sure that the first and second statements were correct, I cut these both things down. Now the choice was between A and D. If I didn't know of this trick, how would I have solved this question? I have written in the examination hall. See, this is something that I want you to see. I have written this in the examination hall on the paper itself that this is the and not trick, and it worked, and I got my answer. लोगों को जो बोलना है बोलने दो. You just focus on what I am saying. With reference to foreign-owned e-commerce firms operating in India, which of the following statement is correct? Okay, they can sell their own goods in addition to offering their platforms as marketplaces. So no, obviously not. The government has announced it time and again that they will not allow Amazon to sell Amazon products, because what will it lead to? It will lead to anti-competitive practices. I was aware of it and thus I cut it down. The degree to which they can own the sellers on their platform is limited. See, I have marked the word limited and even like mentioned here that okay, this is going to be correct. Why? Because I have taught you time and again that wherever the examiner did not give you specific data and instead tries to give you something, some word on the basis of that. For example, here they could have written the exact percentage. Maybe it is 5%, maybe it is 20%, but no, they didn't. What they wrote was it is limited. On similar lines, there was a question in 2021 where they said FII with certain conditions. Certain conditions. They didn't mention the conditions. And similarly here what they said is it is limited. They have not given the exact limitations, as they had not given the exact conditions in the FII question in 2021. So I was damn sure that this statement is going to be correct. So I ended up marking 1 and 2 and got my statement question correct. Understood? Chalo, let's move ahead. Which of the following activities constitute the real sector in the economy? The real sector. Okay. Farmers harvesting their crops, textile mills converting raw cotton into fabric, a commercial bank lending money to a trading company, a corporate body issuing rupee denominated bond overseas. Okay, so whatever I told you, how did I approach this question? Let's look at it. First of all, I marked real sector, then I marked activities. Okay, real sector activities. Farmer harvesting their crops, textile mills converting into raw fabric. So there is a real sector which is actually doing the physical work, which is actually doing the production work, which is actually doing the manufacturing work. And then there is the tertiary sector. For example, the financial sector. For example, the corporate, the bond market sector. Okay, and this is how, if you see, I have highlighted this particular thing and marked these two incorrect and then ended up marking my answer, and this is my fourth correct answer. But what I wanted to focus upon is how did I understand this? Because I had this knowledge from my previous year questions that when it comes to vulnerable sectors and when it comes to people who the government care about, for example the farmers, UPSC is a pro-government body. Obviously it is a pro-social body. So the statements regarding farmers and other vulnerable sections won't generally be incorrect, and that is how I ended up marking it correct. Real sector. If this statement was incorrect, if the first statement was incorrect, please listen to this very, very carefully. If the first statement was incorrect, then UPSC would have been saying that farmers who are harvesting their crops are unreal sector, do not belong to the real sector, and such a statement will never be made by UPSC. Never. बात समझ में आ गई? ये कहना कि किसान जो है वो अपनी क्रॉप जब हार्वेस्ट करते हैं तो वो रियल सेक्टर में नहीं आता. This will never be done by UPSC. Never. Okay, and thus you'll get 1 and 2 as the answer. आगे बात समझ? चलो नेक्स्ट देखते हैं. Which one of the following situations best reflects indirect transfers often talked about in media recently with reference to India? Okay, now see, what did I understood at that particular point of time? Best reflects, that means even there would be other statements that might reflect, but I have to go for the best one. Do not miss these things.
reflects indirect transfers. Indirect transfers, often talked about in media recently with reference to India. Okay, so indirect transfers, and they are talked about in the media, and they are talked about in reference to India. So, what did I understand from this particular thing, or what did I derive from this particular thing? That there must be some indirect transfers which are happening out of India. Money is going out of India, because only then will it be discussed in the media, only then will it be important. Because when we talk about the money coming to India, we generally talk about remittances, etc. Okay, but these things are not discussed in the media. What is discussed in the media, or what is important in the media, is the money, the transfers that are going out of India. Until and unless obviously something is done for terror financing and is coming into India, then in that particular case it will be discussed in the media. But here the options were related to the financial sector. Okay, let's have a look and let's understand how did I approach it. An Indian company investing in a foreign enterprise and paying taxes to the foreign country on the profits arising out of its investments. Okay, Indian company investing in foreign enterprise, paying taxes to foreign country on the profit. So it is an Indian company which is directly investing in a foreign company, right? Then second, a foreign company investing in India and paying taxes to the country of its base on the profit arising out of its investment. Okay, whatever the profits are arising, it is paying tax to its home country. And in this particular statement, it was saying that the Indian company is paying taxes to the foreign country. Okay, now let's look at the third statement. An Indian company purchases tangible assets in a foreign country and sells such assets after their value increases and transfers the proceed to India. So this was the first statement that I cut. Transfers the proceed to India. No, that is not happening. The money is going out of India. A foreign company transfers shares and such shares derive their substantial value from assets located in India. A foreign company transfers shares and such shares derive their substantial value from assets located in India. The most good looking and sophisticated statement of this particular question. Why and how? Let's understand. So, when we are discussing indirect transfers that are happening out of India, okay, first thing is note the word indirect. When you are talking about these things, that an Indian company is paying tax outside, a foreign company is paying tax to its home country, all of these are part of direct transactions happening, direct transfers that are taking place, direct investment, direct transactions, direct transfers. But look at this, a foreign company, okay, that had shares from assets located in India, that had shares which derived their substantial value from assets located in India, is now transferring such shares. सो एक फॉरेन कंपनी इंडिया में आई, उसने इंडिया में आके किसी पर्टिकुलर चीज़ के शेयर्स खरीदे, अब उन शेयर्स को ट्रांसफ़र कर रही है इंडिया से बाहर. कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई टैक्स पे नहीं कर रही है, ये सब नहीं है. शेयर्स को ट्रांसफ़र कर रही है इंडिया से बाहर. तो मतलब एक सब्सटेंशियल पोर्शन उस एसेट का जो इंडिया में लोकेटेड है वो कहाँ जा रहा है, अब वो बाहर जा रहा है इंडिया से, वो बाहर रिलोकेट किया जा रहा है, वो बाहर ट्रांसफ़र किया जा रहा है. ओके, एंड सेकेंड दैट इट वॉज going in line with what was asked about what is going on in the media, what is going out of India, and also the best reflection of the word indirect transfer. With this, I ended up marking answer number D, and I guess this was correct. Okay, so this is how I marked it, even though I didn't know it. जब आप easy questions को जल्दी solve कर लोगे ना, तब आप ऐसे questions में थोड़ा time दे पाओगे. इसीलिए कहता हूँ जहाँ पे कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, जहाँ पे डायरेक्ट आपकी ट्रिक लगती है, उनमें ज़्यादा टाइम मत लगाना, उनको मार्क करना और आगे बढ़ जाना, सो दैट यू आर एबल टू गिव टाइम ऑन सच क्वेश्चंस. विद रेफरेंस टू एक्सपेंडिचर मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और करेक्ट. ओके, ये मैंने पहले भी समझाया था. एक्सपेंडिचर में कैपिटल क्या होता है, करंट क्या होता है, ठीक है. एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्कुल आपका एसेट क्रिएट हो रहा है, मैंने पहले समझाया था. इफ यू आर डूइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट मीन्स यू आर क्रिएटिंग सम एसेट, सो हियर टेक्नोलॉजिकल एसेट इज बीइंग क्रिएटेड, दैट्स गुड. Debt financing is considered capital expenditure while equity financing is considered revenue expenditure. Now look at it. How did I approach this statement? First of all, I marked the word while. Okay. And then I understood that it is giving a comparison. Debt financing is considered capital expenditure. Equity financing is considered revenue expenditure. Okay. See, I marked it. That UPSC has interchanged it. How? Why? Because equity financing अगर आप कर रहे हो, इसका मतलब आप अपनी इक्विटी बेच रहे हो. इक्विटी आपके एसेट्स हैं,
आपके एसेट्स डिक्लाइन हो रहे हैं, अगर आपके एसेट्स डिक्लाइन हो रहे हैं तो वो क्या है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है. ओके, अंडरस्टूड. सो इट इज नॉट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट. सो यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर केस व्हेन यू आर डूइंग इक्विटी फाइनेंसिंग you are diluting your assets. Clear? So this statement was marked incorrect and I ended up marking A, and this was the question that I got correct. Okay, so now you can see that on the first page I just got one correct, whereas then I directly got nearly 5-6 questions as correct. Okay, let's look at this one. With reference to Indian economy, consider the following statement. A share of the household financial savings goes to government borrowings. Again, a share. It has not mentioned most of the share, 50% share, 40% share. A share. Even if it is 1 rupee, that is a share. So how would you track? There is a thousands of crores of household financial saving, thousands and thousands of crore. How will you keep a track of each and every rupee if it is going into government borrowing or not? Understood? So please focus on these statements. Look, I have also marked it and written here general. This is a general indication. Dated securities issued at market related rates in auctions form a large component of the internal debt. Again, large component. It has not mentioned it is the most of the component, it is the highest component, it is more than 50% of the component, large component. Both these statements have evaded data to give certain generic things like a share and large. And these are the things that I have marked in this particular question. Please look at it carefully, apply these things in the examination hall. I've taught it to you very well to not miss these, and you'll score 2 more marks. Okay, clear? Chalo. Okay, pursuant to the report of the H.N. Sanyal Committee, the Contempt of Court Act 1971 was passed. The Constitution of India empowers the Supreme Court and the High Court to punish for contempt of themselves. The Constitution of India defines civil contempt and criminal contempt. In India, the Parliament is vested with the powers to make laws on the contempt of court. Okay, now this is a very easy question. Let's look at it. How did I solve it? It is a question similar where I have taught you that there will be an act that will be talked about, and then on the basis of that act there will be some questions, some statements, and it will change. Okay, so let's look at this. First is, pursuant to the report of the H.N. Sanyal Committee, the Contempt of Court Act 1971 was passed. Maybe, I'm not sure of it, but what I get it from here is that this question is about the Contempt of Court Act 1971. This is what is being discussed here. Then the first statement here is, Constitution of India empowers the Supreme Court and the High Court to punish for contempt of themselves. Okay, again, it might be correct, it might not be correct, because whenever Constitution of India appears in any particular statement, this statement is tend to be incorrect. This we have seen from previous year questions. Now, in the third statement, what we see is the Constitution of India defines civil contempt and criminal contempt. Defines. We have seen time and again that whenever such words are used, provides for, defines, with regards to a statement where Constitution of India is written, it has to be incorrect. So what would have been the defining factor here would have been the act, the Contempt of Court Act, and not the Constitution of India. The acts where this particular thing would have been defined are the Contempt of Court Act. This I taught you in the 2021 paper that these things are going to happen, and it was seen in this particular statement, in this particular question. So the third statement was marked incorrect by me, and as soon as I cut the third statement, I was already down with 2 statements, and now I was also sure that 1 and 2 are correct. Now what remained was the fourth statement. In India, the Parliament is vested with the powers to make laws on contempt of court. Now what I did was a blunder, a stupidity. Please look at it. What I did here was stupidity. You should not do this. It was a major blunder on my part, else I would have got this question very easily correct. It is saying इंडिया में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट का है. अरे तो और किसका होगा? ऑब्वियसली पार्लियामेंट का है. ऊपर दे तो रखा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट पास हुआ था, एंड आई वाज सो स्टूपिड, सो ब्लडी स्टूपिड दैट आई थॉट कि ये तो कोर्ट करेगी, जुडिशियरी करेगी, एंड आई मार्क्ड 1 and 2. This was the silliest mistake in the examination hall that I did. Silliest, stupidest. चाटा मार दो खुद की, ऐसी वाली गलती है ये. ठीक है, नहीं करनी है. आगे बात समझ में. कौन बनाए, कौन नहीं, मतलब पार्लियामेंट नहीं कानून बनेगा तो कौन बनाएगा? ऑब्वियसली पार्लियामेंट कानून बनेगा यार. ठीक है. सो दिस वॉज अ मेजर ब्लंडर, एंड हो जाता है. आपको नहीं करना है लेकिन हो जाता है.
ठीक है, ये बहुत ही मेजर ब्लंडर था। ऊपर यहीं पे इसने आंसर मेंशन कर रखा था यार, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 पास हुआ, और कह रहा है नीचे कि पार्लियामेंट के पास ही पावर होती है कानून बनाने की कंटेम्प्ट के रिगार्डिंग। अरे तो किसके पास होगी? कानून तो पार्लियामेंट ही बनाएगा ना, कोर्ट कब से कानून बनाने लगी? सो दिस वॉज द बिगेस्ट ब्लंडर दैट आई डिड। दिस स्टेटमेंट शुड हैव बीन मार्क्ड करेक्ट, आई शुड हैव मार्क्ड इट बी। इतना दिमाग लगाने के बाद, ये सब करने के बाद भी गलत कराया मैं ये, क्योंकि गलतियाँ होती हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। With reference to India, consider the following statements. Government law officers and legal firms are recognized as advocates, but corporate lawyers and patent lawyers are excluded from recognition as advocates. देखो वही है ये, ठीक है, वही है, बट नॉट वाली ट्रिक है, सिंपल। गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट्स, बट कॉर्पोरेट लॉयर्स एंड पेटेंट अटर्नीज आर नॉट। यही है ना, ये सब तो फालतू की बकवास लिखी है तो यही ना, ये आर नॉट, तो बट नॉट इनकरेक्ट मारो। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए ट्रिक्स पे आपको। जब नहीं पता तो पता है तो अलग बात है। बार काउंसिल के पास पावर है टू ले डाउन द रूल्स रिलेशन टू लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेजेस, होगी, पावर है ना, पावर। क्या पता बार काउंसिल के पास कितना मैंडेट है, कितनी पावर है? हाउ डू आई नो? मैंने तो कभी नहीं पढ़ा बार काउंसिल की पूरी बुक, जाके ना एग्जामिनर पढ़ेगा बैठ के। जितनी भी बार काउंसिल के पास पावर है, कोई ऐसी पावर ढूंढ के लाऊं जो नहीं है। नॉट गोइंग टू हैपन, राइट? सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, योर आंसर इज 2 ओनली। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी, अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं 18th। ओके, जस्ट अ सेकेंड। हाँ ओके, ठीक है, लेट्स हैव अ लुक एट इट। सो a bill amending the constitution requires a prior recommendation of the president of India. When a constitution amendment bill is presented to the president of India, it is obligatory for the president of India to give his or her assent. A constitution amendment bill must be passed by both the Lok Sabha and the Rajya Sabha by a special majority, and there is no provision for joint sitting. There is no provision for joint sitting. Okay, so this is a very easy question directly from polity. It has nothing much to do here. तो सबसे पहले मैंने यही कट किया, दिस वॉज फ्रॉम बेसिक नॉलेज। सबसे पहले ये कट किया, फिर यहाँ पे देखा कि हाँ ये तो ठीक है, प्रेसिडेंट का असेंट लेना होता है, ऑब्लिगेटरी होता है। फिर देखा कि नहीं, जॉइंट सेटिंग का प्रोविजन नहीं होता है, ये बात तो सही कह रहा है, तो ये करेक्ट है, और मैंने 2 और 3 यहाँ पे मार्क कर दिया। सो दिस वॉज डायरेक्टली फ्रॉम नॉलेज, इसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं लगी, पॉलिटी में लगती हुई थोड़ी कम है। चलो 14 देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज। कितनी बार बता चुका हूँ 2020 और 2021 के पेपर में, लेकिन अब भी आप गलती करोगे तो फिर कैसे चलेगा? एज इट इज़ चीज़ें अप्लाई हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, आप बता दो मुझे। बट नॉट एज इट इज़ अप्लाई हुआ, एक्ट वाली चीज़ एज इट इज़ अप्लाई हुई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाली चीज़ एज इट इज़ अप्लाई हुई, जनरल वाली चीज़ एज इट इज़ अप्लाई हुई। कहाँ डेटा दे रखा है, कहाँ डेटा कोई ल्यूड कर रखा है, वो चीज़ एज इट इज़ अप्लाई हुई। अब देख लो किस तरीके से क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं। अब भी आप इन कॉन्फिडेंटली प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे, ये अब भी आप बैठ के मॉक्स के बारे में सोचोगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है सर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर क्लासीफाई करता है, अगर ऐसा कुछ दे रखा है इसने, तो वो बकवास दिया होगा। सो इसको मैंने काटा। देन नेक्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शेल नॉट एक्सीड 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा। अब देखो अगेन, दिस वाज द सेकंड ब्लंडर दैट आई डिड। सेकंड ब्लंडर गिनते रहना कितने की है, ये मेरा सेकंड ब्लंडर था। एकदम ईजी क्वेश्चन है, सब कुछ पता है मुझे इसके बारे में। ये देखो मैंने लिख रखा है 91 अमेंडमेंट से आया था, ये मैंने लिख रखा है। ज़बरदस्ती ओवर थिंकिंग करके यहाँ इंक्लूडिंग को सर्किल किया और मार्क कर दिया नीदर। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी है भाई साहब, मतलब इतना गुस्सा आ रहा है मुझे। एक वो वाला क्वेश्चन और एक ही वाला क्वेश्चन, दीज वर द बिगेस्ट ब्लंडर्स दैट आई डिड इन दिस पेपर। मतलब ज़बरदस्ती पहला स्टेटमेंट गलत काट दिया, दूसरे का ये पता है कि 91 अमेंडमेंट में हुआ था, लेकिन क्योंकि रिवाइज नहीं कर रखा है, क्योंकि पॉलिटी पढ़े पता नहीं कितना 1.5 साल हो गया था, 1.5 साल से ज़्यादा, तो हो गया ब्लंडर। एंड आई कट दिस स्टेटमेंट एज वेल, और मार दिया। देखो मतलब सच में बहुत ही बुरा लगा, बहुत ही बुरा। ये 2 क्वेश्चंस तो नहीं गलत होने चाहिए थे, बट ठीक है सर, यही ज़िंदगी है। ठीक है, व्हाट आर द एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा। पहले राज्यसभा की पूछी थी, अब लोकसभा की पूछी है, मतलब लास्ट ईयर में 2020 वगैरह में। टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, नहीं, इसमें आपको राज्यसभा का भी हाथ लगवाना है। टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, सही बात है। टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नहीं, इसमें भी राज्यसभा का इन्वॉल्वमेंट होता है। द एक्सक्लूसिव पावर क्या है, ये है। सो आंसर इज 2 ओनली, डायरेक्ट फ्रॉम नॉलेज, इसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं है। With reference to anti-defection law in India, consider the following statements. The law specifies that a nominated legislature cannot join any political party within 6 months of being appointed to the house. ओके, तो कैन नॉट वाली बात भी मैंने समझाई है जब ऐसा कुछ आ जाता है, लेकिन ये तो डायरेक्टली हम पढ़ते भी हैं। ठीक है, ऐसा कुछ होता है कि 6 महीने के अंदर अंदर ज्वाइन कर लो, उसके बाद तुम ज्वाइन नहीं कर सकते। सो दिस स्टेटमेंट वॉज इनकरेक्ट।
सेकंड है लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड ऑन डिफेक्शन, बिल्कुल सही है, ये तो सारा मुद्दा है। ठीक है, यूपीएससी देखो कितना वो होता है, अगर यहाँ पे ऐसे लिखता है देयर इज नो टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड अ डिफेक्शन केस, तो ऐसा हो जाता है शायद इस स्टेटमेंट में डाउट आ जाता है, क्योंकि हाई कोर्ट ने तो बोला है एक कि नहीं भाई टाइम फ्रेम में डिसाइड करो, इतना टाइम फ्रेम लो, ये लो वो लो मेघचंद्र केस में, तो इसने क्या बोला, लॉ में नहीं लिखी भाई कोई भी बात, एंड तो मतलब इतनी श्योरिटी से स्टेटमेंट बनाता है ना, आपकी कोचिंग वालों की तरह नहीं कि भाई कुछ भी बना दिया एरा गिरा नत्थु खैरा, बहुत श्योरिटी से बनाता है। ठीक है सर, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया, 2 ओनली। चलें आगे। ओके, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया are the only officers of the government who are allowed to participate in the meetings of the Parliament of India. Okay, now for a fact I knew that this question is incorrect. This particular statement is incorrect. ये तो मुझे पता था। ठीक है, तो दूसरा है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फिर से देखो वही आ गया, एक पेपर में कितनी बार दिखाऊं आपको मैं। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ व्हिच अपॉइंट्स हिम रिजाइंस, कितनी बार दिखाऊं एक ही पेपर में। तो ये मुझे नॉलेज से पता था, ये मुझे ट्रिक से पता था, और मैं अपने आंसर पे आया और 2 नंबर लेके घर बैठा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, मतलब ये कन्वेंशन हो सकती है एक, ये कोई रूल हो सकता है, ये कोई लॉ हो सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया होगा, ये है बात। विद रेफरेंस टू रिट्स इशूड बाय द कोर्ट्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ये हम पढ़ते हैं, कोई ज़्यादा नई बात है नहीं इसमें, फंडामेंटल राइट का चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मीकांत का पार्ट 1 सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं कई बार बता चुका हूँ। मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट द कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी, तो नहीं, बस मैंडेमस का क्या होता है कि वो प्राइवेट के खिलाफ आप नहीं डालते हो। सो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, एंड एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी पेटिशनर टू मूव द कोर्ट टू ऑब्टेन द रिट ऑफ कोवरेंटो, कोवरेंटो कोई भी जाके दूसरे के बेसिस पे भी कर सकता है, इंटरेस्टेड पर्सन नॉट नेसेसरीली एग्रीव्ड। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया सी, नॉलेज बेस्ड ही था ये, तो ज़्यादा कुछ था नहीं, क्योंकि फंडामेंटल राइट वगैरह के चैप्टर हम अच्छे से ही पढ़ते हैं, जब भी पढ़ते हैं, चाहे कितने भी टाइम पहले पढ़े हो, तो ये चीज़ याद रही। ओके क्लियर, लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 19। विद रेफरेंस टू आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स मस्ट अडॉप्ट इट as it aims to achieve universal health coverage. Every citizen of India should be part of it ultimately. It has seamless portability across the country. Okay, अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें मुझे सबसे पहले क्या पता था कि भाई सेकंड इनकरेक्ट होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले मुझे ये पता था एज इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली, नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। अभी भी हम जब आयुष्मान भारत की बात करते हैं तो हमने एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट लगा, एक स्पेसिफिक इनकम लिमिट लगा रखी है कि इतनी इनकम होगी तभी हम वो करेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, अगर कोई करोड़पति हो तो वो तो अफोर्ड कर सकता है ना इलाज, तो हमें क्या दिक्कत है, हम क्यों ज़बरदस्ती ये कह रहे हैं कि नहीं हर एक इंडियन को उसका पार्ट बनाना है, तो ये ज़बरदस्ती का स्टेटमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने काटा ये, तो सेकंड काटा तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, थर्ड का मैं श्योर हो गया, प्लस थर्ड का मुझे दिख भी रहा था कि एक पॉजिटिव फीचर दे रखा है इसने कि सीमलेस पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये देखो ये चीज़ों को ना ऐसे मत लिया करो। एक दिन मुझे कोई कह रहा था कि यार लेकिन सीमलेस पोर्टेबिलिटी कहाँ होती है, ये तो चलते ही नहीं है इनके ऐप वेब, तो दैट इज़ नॉट व्हाट इट इज़ बीइंग सेड। यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये है कि फीचर क्या है, ये एक फीचर है सीमलेस पोर्टेबिलिटी होना इसका, वो इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है ठीक है वो एक अलग बात है, बट ये व्हाट इज़ दिस इन दिस पर्टिकुलर केस इट इज़ अ फीचर, सो दिस हैज़ टू बी करेक्ट। वैसे भी हमें पता चल रहा है ये 2 काट के कि थर्ड जो है वो करेक्ट होने वाला है। नाउ इट वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट स्टेटमेंट, पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स मस्ट अडॉप्ट इट। अब यहाँ मुझे लगा कि यार सोशल बात है, लेकिन मुझे अपनी गट के साथ ही जाना चाहिए था। मैंने इस पर पहले क्वेश्चन मार्क लगाया, फिर सोचा कि यार सोशल चीज़ें हो सकता है ठीक हो, लेकिन नहीं, जो ट्रिक्स है वो काम करती हैं। मुझे पता था कि मस्ट अगर लिखा है तो कुछ ना कुछ पंगा है, आप फोर्स नहीं कर सकते किसी को कि ये नहीं आप इस चीज़ को अडॉप्ट ही करो सॉरी, तो मुझे लगा कि मतलब नहीं ऐसे होना नहीं चाहिए, तो ये वॉलंटरी है फॉर प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स, दिस इज जनरली वॉलंटरी स्पेशली फॉर प्राइवेट हॉस्पिटल्स। तो बट आई डिड अगेन अ मिस्टेक, मैंने सोचा कि शायद सोशल इनिशिएटिव है ठीक ही दिया होगा, बट नहीं, अगर मैं ट्रिक के साथ जाता, अगर मैं अपना ज़्यादा दिमाग ना लगाता तो मैं इसको भी ठीक करके आता। आई मार्क 1 and 3, आई शुड हैव मार्क 3 ओनली, एंड दस ये मेरा छठा क्वेश्चन हुआ जो इनकरेक्ट। अभी तक देखो मैंने स्किप नहीं किया कुछ भी। ओके ठीक है, विद रेफरेंस टू डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चलो देखो ये क्वेश्चन मेरा ठीक हुआ है, तो देखो कैसे किया मैंने। एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द लोकसभा द इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच अ डेट एज द स्पीकर में फिक्स। सही है, मैंने स्पीकर में फिक्स पे 2 अंडरलाइन कर रखी है, इसको सही मारा, स्पीकर ही करता है।
there is a mandatory provision that the election of a candidate as deputy speaker of Lok Sabha shall be from either the principal opposition party or the ruling party. ये मैंडेटरी प्रोविजन है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये बस कन्वेंशंस होती हैं, ठीक है। तो जैसे ऐसा कुछ आए कि ये मैंडेटरी है, ये तो यहाँ लिखा है वहाँ लिखा है, नहीं, काट दो ऐसी चीज़ को, तो ये इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। सेकंड इनकरेक्ट हुआ तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। ओके, द डेप्यूटी स्पीकर हैज़ द सेम पावर एज द स्पीकर व्हेन प्रिसाइडिंग ओवर द सिटिंग्स, तो ठीक है, हाँ, जब डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर का काम कर रहा है तो उसकी पावर भी आ गई उसके पास, तो थर्ड तो करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है। फर्स्ट करेक्ट है तो मेरा यहीं से आंसर आ जा रहा है 1 and 3, बट स्टिल देख लेते हैं। वेल एस्टैब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर इज दैट द मोशन इज मूव्ड बाय द स्पीकर एंड ड्यूली सेकेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ड्यूली सेकेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, नहीं, तो इसमें क्या कर रहा है ये, अगेन यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है। क्लियर? ओके, आर्टिकल नंबर यहाँ पे अगर पढ़ोगे तो शायद 92 93 में होगा ये। तो ये समझ में आई मुझे बात कि भाई फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, उसी को मारा, ये गलत है सब, एंड अपने 2 नंबर आ गए। तो जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर फैक्ट कि भाई ये तो चलो ठीक है, नॉर्मल दे रखा है, स्पीकर ही फिक्स करता है तो ये तो ठीक है, और यहाँ पे ऐसे मैंडेटरी प्रोविजन करवा रहा है तो फिर गलत है, ये तो सिर्फ एक कन्वेंशन है। जस्ट इतनी सी बात के बेसिस पे आई कुड सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड गेट 2 मार्क्स। अब आप बताओ ये कहाँ से टफ है, क्यों आपको इतना डर लग रहा है? देख रहे हो, पहले 4 क्वेश्चंस में 0 मार्क्स थे, ठीक है, 20 क्वेश्चन तक आते आते क्या स्कोर है, 14 करेक्ट है, 6 इनकरेक्ट हैं, तो यानी कि 12 12 दूनी 24 नंबर हो गए हैं। पहले 20 क्वेश्चंस में 24 मार्क्स बन गए हैं। तो मतलब बिल्कुल भी ज़रा सा भी डरने की बात नहीं है अगर कहीं कुछ क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, और इसमें तो मतलब 2-3 तो ऐसे मेजर ब्लंडर किए हैं मैंने जो करने ही नहीं चाहिए थे इन 6 में से, तो आपने देखे, जो कि बिल्कुल ही आसान है, मतलब बिल्कुल ही आसान। 2 तो ऐसे थे बिल्कुल ही केक वॉक थे, अगर वो ठीक होते तो यहीं पे ये स्कोर कितना हो जाता, नियर अबाउट 30 के आसपास चला जाता, ठीक है। तो बस ये गड़बड़ मत करके आना, ठीक से पेपर करके आओ, डरो मत पेपर से, कॉन्फिडेंस से जाओ, जो समझा रहा हूँ सिखा रहा हूँ उसको अप्लाई करके आओ और होगा क्लियर। चलो आगे देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ बोथ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड? 10 बार पढ़ते हैं, 50 बार पढ़ते हैं ये 4 चीज़ें हैं, इनको घुमा घुमा के पूछता रहता है। देखो, शुगर केन पूछा जस्ट इससे पिछले साल, वाटर इंटेंसिव। कॉटन पूछा जस्ट उससे पिछले साल, कितने इसमें पानी लगता है, क्या लगता है। राइस इस बार पूछ लिया, अब हो सकता है अगला नंबर वीट का ही आ जाए, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। वैसे भी मैंने बताया था इस बार वो वीट वगैरह का इशू चल रहा है, लास्ट ईयर हमने वीट का एक्सपोर्ट भी बैन कर दिया था, इस बार हमने वो जो नई वैरायटी ऑफ वीट उगाई है IARI ने, तो पढ़ के जाना थोड़ा सा वीट के बारे में, हो सकता है बिल्कुल आ जाए, ठीक है। तो इसका आंसर था राइस, ये सिंपल था क्वेश्चन। अब देखो, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, अभी हम राइस मार्क करके आए हैं, यहीं पे पूछ लिया। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ऑफ कल्टिवेशन इन विच ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड्स इज प्रैक्टिस रिजल्ट्स इन। तो देखो क्या हो रहा है, एक कोई नई प्रैक्टिस की बात आई है। अब नई प्रैक्टिस के बारे में मैंने आपको क्या बताया है, देखो यहाँ पे देखो, एक चीज़ क्या बोल रहा है, रिड्यूस्ड मीथेन प्रोडक्शन, अगर हम ये टेक्निक यूज़ करेंगे तो मीथेन प्रोडक्शन कम हो जाएगा। और यहीं पे इसने बोला था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है, तो हम एक नई टेक्निक लेके आ रहे हैं ताकि मीथेन प्रोडक्शन कम हो जाए, तभी तो लेके आ रहे होंगे जब राइस प्रोडक्शन में से बहुत ज़्यादा मीथेन निकलता होगा। तो इवन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बैकिंग द प्रीवियस क्वेश्चन। ये देखो मैंने मार्क के एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के कि भैया ये देख, तेरी बात बिल्कुल सही है, इसका आंसर राइस ही होना चाहिए, ठीक है। बाकी मैंने क्या सिखाया है, कोई नई टेक्नोलॉजी आए, ठीक है, पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिव काम कर रही है, तो सबको करेक्ट मानो क्योंकि सब पॉजिटिव है, अपना आंसर डी मारो। ऐसी चीज़ों में कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, कोई बैठ के वहाँ पे खेती एक्सपर्ट नहीं बनना है, बिल्कुल सिंपल रखनी है चीज़ें। ओके, क्लियर? Which one of the following lakes of West Africa has become dry and turned into a desert? Now see how did I solve this question? I applied the GBW here. If you do not know what is GBW trick, you should definitely watch the lectures यार, मतलब they will just change your perspective. This is what people say, this is not what I am saying. अपनी क्या तारीफ करूँ ऊपर वाले से मैं डरूँ, खैर नो सॉरी। ओके, सो what is important is that you please watch those lectures, they are very important. They will just change your perspective. How did I apply the GBW? Lake Victoria and Lake Volta. These are very famous. Even in my mapping lecture, I have talked about them. Lake Victoria and Lake Volta. Now these two lakes, Lake Fegubin and Lake Oguta, are just out of bounds. नहीं पढ़ी है, या मैंने तो कभी नहीं पढ़ी है, ना मैंने कभी सुनी है। And moreover, how did I solve it? कि भाई चलो ठीक है, इन दोनों में से करना है। Lake Fegubin is something that an examiner cannot just make out of thin air. उसके दिमाग में कहीं से ऐसे नहीं आ सकता कि चलो एक लेक डालता हूँ, लेक फेग्यूबिन। अगर आप लेक्स के नाम डालोगे, आप कैसे डालोगे ऐसे जो मतलब जनरली आपने सुने होंगे, जनरली आप मैप में देखते हो, फेग्यूबिन किसको याद आएगा? तो अगर ये आंसर नहीं है तो क्यों है क्वेश्चन में, कहाँ से आ गया क्वेश्चन में? दिस इज वॉट आई एक्सप्लेन टू यू इन द GBW ट्रिक, एज इट इज अप्लाई हो रही है। आई टुक द रिस्क, आई मार्क्ड इट एंड आई गॉट इट करेक्ट।
यही होता है, इसीलिए लोगों की फॉरेस्ट की कट ऑफ क्लियर होती है। यही चीज़ नहीं आती थी पहले तो नहीं प्री क्लियर हो रहा था, ये चीज़ आ गई तो प्री क्लियर हो जा रहे हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। चलो, सो द आंसर हियर इज बी। गंदीकोटा कैनियन ऑफ साउथ इंडिया वॉज क्रिएटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? कावेरी, मंजीरा, पेन्नार, तुंगाभद्रा। अब देखो मुझे नहीं पता था इसका आइडिया, चारों की चारों सुनी हुई भी थी तो मैं कुछ नहीं कर सकता था, मैंने ज़बरदस्ती का रिस्क लिया, आराम से मैं इसको स्किप कर सकता था बट मैंने नहीं किया एंड आई हैव मार्क्ड इट एंड गॉट इट इनकरेक्ट। ये चारों चारों सुनी हुई है, इसमें से कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं सुना हुआ है। सो ठीक है, अब रिस्क लिया तो लिया, मारा तो मारा, एंड आई गॉट इट इनकरेक्ट एंड दैट्स ओके, कुछ क्वेश्चन तो गलत होंगे ही। देन नेक्स्ट, दिस वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन। नामचा बरुआ, गढ़वाल हिमालयाज, नंदा देवी कुमाऊं हिमालयाज, नोकरेक सिक्किम, इसमें से बताना है कि कौन से पेयर्स सही से मैच्ड हैं। तो देखो ये सबको पता है कि नोकरेक नेशनल पार्क जो है वो कहाँ है, मेघालय में है। देखो लिखा भी है मैंने, मेघालय नोकरेक नेशनल पार्क। ठीक है, तो थर्ड तो इसका मतलब इनकरेक्ट है, तो थर्ड इनकरेक्ट है। तो हाँ, इसमें मैंने पता नहीं क्या कर रखा है, अभी आई एम नॉट श्योर। देखो यहाँ पे 2 मार्क्ड है, आई एम नॉट श्योर मैं किसको मार्क करके आया हूँ, इसको काट के आया हूँ कि इसको, मतलब ऑब्वियसली मैं ठीक ही मार्क करके आऊँगा इसे, बट क्योंकि बाहर आके का कैलकुलेट करना था और मेरे इस पे दोनों पे टिक लगे हुए थे तो मैंने इसको रॉन्ग में काउंट किया। बट दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले आप क्या करोगे, ये देखोगे कि नोकरेक नेशनल पार्क कहाँ है, मेघालय में है। ठीक है, तो सिक्किम तो बहुत दूर है, तो सबसे पहले आप थर्ड वाला काटोगे। अब आपको सेकंड की हो गई श्योरिटी, अब आपको बस पहला देखना है, नामचा बरुआ गढ़वाल हिमालयाज। जबकि नामचा बरुआ कहाँ है, ये ईस्टर्न मोस्ट सेक्शन है हिमालय का, कहाँ पे, तिब्बत में। ओके, और जो ये गढ़वाल हिमालयाज हैं ये है इधर उत्तराखंड में। ठीक है, तो नहीं, तो ये वाला तो इनकरेक्ट था। अब ये सारी चीज़ें मैपिंग में आपको ऑलरेडी कवर करा रहे हैं, राइट, तो ये तो इनकरेक्ट था। तो फर्स्ट आप काट दोगे एंड आप सेकंड ओनली मार्क किया होगा, यही मैंने मारा होगा, बट क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ तो मैंने इसको फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी गलत यहाँ पे नेगेटिव कंसिडर कर लिया है, क्योंकि मैंने इसमें 2 पे मार्क कर रखा है। ठीक है, चलें आगे। द टर्म लिवांत ऑफन हर्ड इन न्यूज रफली कॉरेस्पॉन्ड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? रीजन्स along the eastern Mediterranean shores, regions along the North African shores stretching from Egypt to Morocco, region along Persian Gulf and Horn of Africa, the entire coastal areas of Mediterranean Sea. अब यहाँ पे मेरे से एक अगेन गलती हुई है, जब मैंने देख लिया था कि 2 जगह मेडिटेरेनियन सी दे रखा है, वो भी मतलब सेम लाइंस पे, तो मुझे इनमें से आंसर को मारना चाहिए था। मुझे ये तो समझ में आ गया कि एंटायर कोस्टल एरिया को तो क्यों ही बोलेंगे, कि पूरा का पूरा जो कोस्टल एरिया है, चाहे वो यूरोप में पड़े चाहे वो इंडिया इसमें अफ्रीका में पड़े, वो लेवांती होगा। तो ये तो गलत है, दिस इज़ तो रॉन्ग, ये तो नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो एंटायर तो नहीं होगा। अब ये वाला जो बचा ये मुझे मार देना चाहिए था, लेकिन मैं इसके साथ गया कि चलो ठीक है, मैं भी कुछ स्पेसिफिक दे रहा हूँ। तो जब आप यार मतलब व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ गेस तो रिस्क तो रहता ही है, बट आपको वो जो रिस्क है उसको बिल्कुल मिनिमम करना है। तो उसको मिनिमम करने के लिए आपको ट्रिक्स अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे अगर मैं ट्रिक अप्लाई करता है, देखो मैंने मार्क भी कर रखा है, ईस्ट मेडिटेरेनियन शोर्स, मेडिटेरेनियन सी, इसको मार्क किया, इसको इनकरेक्ट कट किया, तो यहीं पे इसको मार्क कर देना चाहिए था, क्योंकि ये तो मुझे दिख ही रहा था कि नहीं ये तो गलत ही होगा, ये तो मतलब ज़बरदस्ती कहीं से बना के ला रहा है वो। सिमिलरली मुझे इसके बारे में भी सोचना चाहिए था, क्योंकि देखो एरियाज़ की बात है, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है ये भी मेडिटेरेनियन का ही एरिया है ना, नॉर्थ अफ्रीकन शोर्स, इजिप्ट टू मोरक्को, तो ये भी मेडिटेरेनियन का ही एरिया है, राइट। तो आई शुड हैव लाइक, मतलब ये मुझे दिख रहा था कि 3 एरियाज मेडिटेरेनियन के हैं, बट मैं डायरेक्ट वाले पे जाना चाहिए था। आई शुड हैव मार्क दिस। ओके, तो यहाँ पे ये भी हो गया क्या, इनकरेक्ट, मतलब मेरा गलत हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज़। तो इसमें देखो मैंने मैप बना के कर रखा है इसको सॉल्व, थोड़ा मैप बनाने की कोशिश करी कि ठीक है कौन सी कहाँ है, कहाँ से क्या हो रहा है। तो इसमें से पूछा है विच ऑफ द अबाउ हैव बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान। ओके, सो अफगानिस्तान के साथ कौन कौन सी कंट्रीज़ बॉर्डर शेयर करती हैं, एंड इसको मैंने देखा, सबसे पहले देखा कि भाई अजरबैजान तो नहीं करती है, तो 1 कट किया, 1 कट करते ही आंसर आ गया। ज़्यादा सोचना ही नहीं है, इतने सिंपल से आपका आंसर निकल के आ सकता है कई बार। ठीक है, ओके, बाकी मैपिंग में कोशिश करूँगा ये कुछ चीज़ें भी कवर कराने की। इंटरनेशनल मैपिंग में ऑलरेडी जितनी भी रिवर्स हैं वो तो कवर करा दी हैं, ये भी ट्राई करूँगा कवर कराने की। ठीक है, चलिए आगे। ओके, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन में से है ये, देखो, मोनाजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ, मोनाजाइट कंटेन थोरियम, मोनाजाइट एक्कर्स नेचुरल इन द एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड्स। ठीक है, यहाँ भी सब सेम चीज़ समझा रहा था मैं आपको, एंटायर गलत होगा, यहाँ भी मैं सेम चीज़ समझा रहा हूँ, एंटायर गलत होगा। थर्ड गलत है, इसको काटा, आंसर आ गया, 2 मार्क लेके घर बैठो, सिंपल। अब इसमें ज़्यादा सोचने लगोगे, दिमाग लगाने लगोगे, तो फिर
होएगा गड़बड़। कुछ लोग फिर सोचेंगे इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनोजाइट। अरे ओनली लिखा है, सी ऐसे नहीं होता, वो कह रहा है कि गवर्नमेंट बॉडीज ही कर सकती हैं। ठीक है, मैंने बताया था आपको 2021 के सेकंड क्वेश्चन को सोचो, क्या था उसका लास्ट स्टेटमेंट? गवर्नमेंट ये चीज़ मैंडेटरी कर सकती है कि सब कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को पैसा सिर्फ उनके बैंक अकाउंट में देगी, ओनली इन देयर बैंक अकाउंट्स। वहाँ पे ओनली गलत था क्या? नहीं था ना। सो take the tone of the question. The tone of the question is that monazite is a very important thing. It is a source of rare earth. It contains thorium, which can then be used for nuclear energy, nuclear plants, and that is why only the government bodies are processing it and regulating it and exporting it. So why should not it be correct? It should obviously be correct. That is how you understand the tone of the statement. Okay. In the northern hemisphere, the longest day of the year normally occurs in the first half of month of June. तो देखो मैंने लिखा भी है यहाँ पे 21 जून योगा डे, तो वो सेकेंड हाफ ऑफ मंथ ऑफ जून है, एंड आई गॉट इट करेक्ट। ठीक है, तो जब पेपर दे रहे हो टॉक टू द पेपर, बी इंटरेक्टिव विद द पेपर। अपना दिमाग बंद करके डब्बा लगा के उस पर पेपर नहीं देना है, डर का डब्बा नहीं लगाना है। ओके, व्हाट इज द कीवर्ड फॉर टुडे? डर का डब्बा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, ये बहुत ईजी था लेकिन क्योंकि रिवाइज नहीं था तो मैं गलत करके आया हूँ इसको। होकेरा वेटलैंड, रेणुका वेटलैंड, रुद्रसागर लेक, सिस्टमकोटा लेक। ठीक है, अब इसमें से पूछ रहा था कि इनकी कौन से की लोकेशन कहाँ पे है। ओके, रेणुका रिपीटेड है तो मुझे पता था कि इसकी तो हिमाचल में ही है, सो आई वॉज श्योर अबाउट इट। ओके, देन आई वॉज ऑल्सो श्योर अबाउट द रुद्रसागर लेक कि ये त्रिपुरा में है। माई डाउट्स वर रिलेटेड टू होकेरा एंड सिस्टमकोटा, बट एक्चुअली होकेरा इज इन ऊपर की साइड, ये आपका कश्मीर वाले रीजन में, एंड सिस्टमकोटा इज इन केरला। सो दीज टू शुड हैव बीन इनकरेक्ट and these should have been the answers. So I should have marked only 2, but because I was lacking revision, so I got it incorrect, and that's okay. You should attempt these questions even if you're getting them incorrect. Okay, consider the following statements. Which of the above are built on top open source digital platform? मैंने आपको क्या बताया है, जब तक आपको ये ना पता हो एग्जैक्टली कि टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस में कोई टेक्नोलॉजी कहाँ अप्लाई हो रही है, बिल्कुल आपको ऐसा ना पता हो कि नहीं यहाँ पे अप्लाई हो ही नहीं रही है, इफ़ यू आर नॉट वेरी श्योर अबाउट द फैक्ट, if you are not absolutely sure about the fact that this particular technology was not used here, do not mark it incorrect. In this particular statement, 4 particular options have been given and they are asking that which of these was created on an open source digital platform. So all of them were created on open source digital platforms because the government would want to improve, the government would want people to inculcate, the government would want various APIs to embed these things, and thus they were created on open source digital platforms, and the answer is all of the above. Okay, with reference to Web 3.0, consider the following statements. Web 3.0 technology enables people to control their own data. In Web 3.0 world, there can be blockchain based networks is operated by users collectively rather than a corporation. Again, when you do not know about such a thing and you are looking at positive good statements that it is giving people and enabling the people, it is creating blockchains, it is helping users collectively operate it, these things are positive. And when positive things come about a new technology, an emerging technology, what do? We mark them correct. So I marked all these statements and correct, and I marked the answer and got 2 more marks and sat happily. आगे बात समझ में, चलें आगे. With reference to software as a service, consider the following statement. SaaS buyers can customize the user interface and change data fields. SaaS users can access their data through their mobile devices. Outlook, Hotmail and Yahoo Mail are forms of SaaS. अभी देखो, दिस स्टेटमेंट कुड हैव बीन इनकरेक्ट, लेकिन मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या होता है क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन अगर आप भी पढ़ लोगे तो आप भी समझ जाओगे. सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, कोई सॉफ्टवेयर को आप एज अ सर्विस यूज़ करने की अनुमति दे रहे हो. सो येस, आउटलुक, हॉटमेल, याहू मेल, ये सब क्या है? दीज आर सॉफ्टवेयर दैट आर यूज एज अ सर्विस. करेक्ट? सो आई मार्क्ड इट करेक्ट. और ऊपर दोनों में तो कैन है ही, यहाँ तो 2 बार कैन है. पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी मतलब एक अच्छी टेक्नोलॉजी के बारे में पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो परेशान होना ही नहीं है. ओके, सो द आंसर इज 1, 2 and 3. With which one of the following statements best reflects the idea behind fractional orbital bombardment often talked about in the media? See, again, I would like to focus your attention here. What is it saying? It is saying about an idea, fractional orbital bombardment system, and then saying that it is talked about in the media. Okay, now let's look at it. So the first one is a hypersonic missile is launched into space to counter the asteroid
approaching the earth and exploded in space. So because just the word bombardment was used, it is saying that it was exploded. Okay, spacecraft lands on another planet after making several orbital motions. It has nothing to do with bombardment system. Okay, and moreover fractional orbital bombardment system, and we rarely have such spacecrafts, right, that land on another planet. So why would they be talked in news? Lands on another planet, lands on another planet. This is like not a बच्चों का खेल. A missile is put into stable orbit around the earth and deorbits over a target on the earth, and then a spacecraft moves along a comet with the same speed and places a probe on its surface. So see, what have I marked? I have सबसे पहले मैंने क्या मार्क किया कि वो मिसाइल स्पेसक्राफ्ट ये बोल रहा है. ठीक है, सो विल इट बी अ मिसाइल और विल इट बी अ स्पेसक्राफ्ट? व्हेन दे वर टॉकिंग अबाउट फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट, तो मुझे इतना समझ में आया कि बम्बार्डमेंट वगैरह कुछ है तो मिसाइल से रिलेटेड होगा. ओके, अब ये यहाँ पे बोल रहा था कि इट पुट्स इनटू अ स्टेबल ऑर्बिट, एक मिसाइल जो है वो इज पुट इनटू अ स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, और फिर वो किसी टारगेट को डी ऑर्बिट कर देती है. ठीक है, डी ऑर्बिट कर देती है. फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम. यहाँ पे क्या बोल रहा है? एस्ट्रॉयड में जाके भिड़ गया उसको एक्सप्लोड कर देगी, कि जाके बिल्कुल एस्ट्रॉयड में टक्कर मार देगी एकदम. ऐसे नहीं होते हैं काम. ठीक है, ऐसे कोई ऐसे नहीं हो रहा होता कि एस्ट्रॉयड आ रहा है और आके सीधा आप उसको टक्कर मारोगे. मूवी नहीं चल रही है. तो अगर कोई चीज़ ऐसी है भी कि आपको उस चीज़ को अर्थ के आसपास से हटाना है, वो अर्थ पे लग सकती है, कुछ हो सकता है, तो व्हाट डू? यू डी ऑर्बिट इट. एंड दिस इज व्हाट दिस इज पर्टिकुलर स्टेटमेंट वाज सेइंग. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बी को कट किया, फिर मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ मिसाइल ही होना चाहिए, एंड देन कि भाई एक्सप्लोर तो नहीं करते हैं, ये सिर्फ तो बस कहने की बात है. सो आई वेंट विद सी एज द स्टेटमेंट. एंड देन इट वॉज ऑल्सो सेइंग कि मीडिया में बात होती है, इसके बारे में सब कुछ होता है, तो मीडिया में कैसी चीज़ों के बारे में बात होगी. अगेन दैट वॉज समथिंग दैट शुड हैव बीन थॉट ऑफ. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. क्यूबिट क्या होता है? क्वांटम कंप्यूटिंग होता है. सो देखो, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन के बारे में यूपीएससी बार बार पूछता है टाइम एंड अगेन. ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग पे वापस से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि बहुत ईजी आया था यहाँ पे, तो इस पर इस बार थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ सकता है. बट वॉट एंड वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जैसे कि लाइफाई के बारे में पूछा था इसने. ठीक है, तो ये भी पूछ चुका है. नाउ वॉट आई एम थिंकिंग, ऐसे एलटी पूछ लिया था. वॉट माई ओपिनियन इज दैट इस बार क्लाउड सर्विसेज के बारे में क्वेश्चन आ सकता है. सो थोड़ा सा इसको हल्का सा पढ़ के रखो कि क्लाउड सर्विसेज क्या होती हैं, कौन सी होती हैं. हल्का सा इसको एक बार गूगल कर लो ताकि आपको बेसिक आइडिया हो. कोई आपसे एक्सपर्टीज़ नहीं मांग रहा है, बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. विच ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड शॉर्ट रेंज डिवाइसेज टेक्नोलॉजी? क्लोज सर्किट, RFID. सबसे पहले RFID तो सबको पता ही है, कार पे लगा होता है, पास में आके स्कैन करते हैं, वो सामने से वो हट जाता है, तो RFID तो होना ही है आंसर. क्लोज सर्किट टेलीविजन तो ऑलरेडी बता दिया इसने, क्लोज सर्किट मतलब कम एरिया में, तो शॉर्ट रेंज डिवाइसेज से टेक्नोलॉजी कोई भी हो सकती है. एंड वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, तो लोकल एरिया मतलब जब आप तीन तरह के होते हैं ना, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ऐसे होते हैं ना, तो लोकल सबसे कम होता है, तो इट इज़ शॉर्ट रेंज, ऑब्वियसली अ शॉर्ट रेंज टेक्नोलॉजी, राइट. सो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट and D is the answer. So you just have to sit there and apply a bit of a common sense, but you will only be able to apply common sense if and only if you are doing what? If and only if you are calm in your head. Clear? Chalo. So the answer was 1, 2 and 3. Next question, biofilms can form medical implants with human tissues. Biofilms can form on food and food processing surfaces. Biofilms can exhibit antibiotic resistance. तो ठीक है, ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट. हर चीज़ में कैन लगा है. बायोफिल्म्स के बारे में है, जब तक मुझे एकदम 1000% श्योर नहीं है कि नहीं ये तो होता ही नहीं है, बायोफिल्म में ये चीज़ तो यूज़ ही नहीं कर सकते, तब तक आई विल नॉट कट इट. एंड ऑब्वियसली दिस इज अ टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ अ टेक्नोलॉजी. 3 चीज़ें दे रखी हैं, उन्हें 3 चीज़ों को देखो मैंने मार्क किया, ज़्यादा कुछ सोचा ही नहीं है. 1, 2, 3 मारो, आगे बढ़ो, 2 नंबर आपके घर के. आगे बात समझ, चलें आगे. ओके, consider the following statements in respect of probiotics. Probiotics are made of both bacteria and yeast. देखो probiotics, I written Yakult because then Shilpa Shetty comes and says ना Yakult पियो, इसमें होता है healthy gut bacteria जो आपके gut को रखे healthy, ऐसे करके she says. So yes, this was going to be correct. The organisms in probiotics are found in food we ingest, but they do not occur naturally in our gut. But not gut. Sorry. Okay, so but not है, गलत काटो, उतना ही कर रखा है मैंने. ये देखो ऐसे ऐसे मार्क भी कर रखा है, पूरा डिज़ाइन बना रखा है पेपर में बैठ के. बट नॉट, इनकरेक्ट. ठीक है, पहला करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, यहीं से आंसर आ गया. बाकी देख लो, प्रोबायोटिक हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ शुगर्स में, तो यस
हेल्प करता है पॉजिटिव चीज़। खाओ प्रोबायोटिक, पियो प्रोबायोटिक, ओके, लेकिन बट नोट काट के, एंड यू गेट योर 2 marks. In the context of vaccines manufactured to prevent COVID-19, now this was again a very big blunder that I did. The Serum Institute of India produced COVID-19 vaccine named Covishield using mRNA platform. Sputnik V vaccine is manufactured using vector-based platform. Covaxin is an inactivated pathogen-based vaccine. Okay, so this was again a blunder that I did. I should not have committed it. It was a easy-going question. सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी कि ऐसा ना हो कि कोविशील्ड ना बनाई हो, कोवैक्सीन बनाई हो। पहली बात है मुझे पता नहीं था, मुझे याद नहीं था क्योंकि मैंने रिवाइज़ नहीं किया था, ना कोई करंट अफेयर में पढ़ के गया था। बट इसने जब यहाँ पे बोला तो मैंने लिखा भी यहाँ पे कि हो सकता है कोवैक्सीन बनाई हो, या हो सकता है कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ करके बनाया हो। कोविशील्ड जो है वो mRNA से ना बनी हो, किसी और चीज़ से बनी हो, ठीक है। तो लाइक आई वॉज थिंकिंग कि ओके, बट नहीं, मैंने फिर इसको ठीक मान लिया। एंड देन आई वॉज ऑल्सो श्योर अबाउट दिस कि कोविशील्ड की एफिशिएंसी ज़्यादा थी, कोवैक्सीन की एफिशिएंसी कम थी, परफॉर्मेंस कम थी उसकी, क्योंकि कोविशील्ड में हम एक्टिविटी डाल रहे थे, कोवैक्सीन में इनएक्टिविटी डाल रहे थे। तो मुझे ये भी लग रहा था कि ठीक है, लेकिन गट के साथ जाने के बजाय मैं प्रोबायोटिक के साथ चला गया। आई एम सॉरी, एंड आई मार्क्ड 1 and 2 एंड गॉट इट इनकरेक्ट। शुड हैव गॉट इट करेक्ट। ओके, अ वेरी इजी क्वेश्चन, द हार्डर दे लुक द ईजियर दे फॉल। सबसे पहले 7 ऑप्शंस हैं, तो क्या करो, डी काट दो, ठीक है, बता दिया है मैंने पहले ट्रिक्स में आपको। अब देखो, या तो 4 ठीक है, या तो 5 ठीक है, या तो 5 ठीक है, ठीक है। तो मतलब इसमें से 2 आपको गलत काटने हैं। क्या है, इफ़ अ मेजर सोलर स्टॉर्म सोलर फेयर रीचेज द अर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल इफेक्ट्स। नाउ इन 7 में सब में कुड 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 दे रखा है, लेकिन स्टिल आपको इसमें से 2 गलत काटने हैं, ठीक है। तो पहला आप क्या गलत देखो, अब क्या गलत कर सकते हैं। GPS and navigation system could fail, tsunamis could occur, power grids could be damaged, intense aurora could occur, forest fires could take place, orbits of the satellite could be disturbed, shortwave radio communication of the aircraft flying over polar regions could be interrupted. Okay, now you have to mark 2 statements out of these as incorrect, right? So the first thing that goes in my mind is this: forest fire could take place over much of the planet. That if a solar flare reaches the earth, it will create फॉरेस्ट फायर। अरे ऐसे आग थोड़ी बरस रही है, सोलर फ्लेयर आग थोड़ी लेके आ रही है कि वो लेके आई और आग लगा दी और फॉरेस्ट फायर क्रिएट कर दिया, ऐसे थोड़ी होता है। सो द फर्स्ट थिंग दैट कैन बी कट डाउन हेयर इज 5th, और अगर आप 5वां काट दोगे तो यहीं कहीं आपका आंसर आ जाएगा। बट एग्जामिनेशन हॉल में मैंने इतना दिमाग नहीं लगाया, मैंने कुछ और काटा है। क्या काटा है मैंने पता नहीं, सेकंड काटा है शायद। अच्छा आई वॉज श्योर कि 3, 6 और 7 तो होना है। ओके, पावर ग्रिड डैमेज हो सकती है, ओके, पावर ग्रिड डैमेज हो सकती है, ऑर्बिट डिस्टर्ब हो सकते हैं, और शॉर्ट वेव भी हो सकती है डैमेज। तो 3, 6, 7 देखो मैंने मार्क भी किया है, 3, 6, 7 दिस आई एम श्योर। तो इसके बेसिस पे मैंने ये भी कट किया, एंड फिर आखिरी में दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना था। 50-50 तक आ गए थे, यहीं की आंसर मार्क करके आगे जाना था, तो मार्क किया, गलत हो गया, कोई बात नहीं, चलता है, थोड़ी बहुत तो चलती है चीज़ें। ओके, सो व्हेन एट द एंड ऑफ 40 क्वेश्चंस मैंने 40 के 40 अटैम्प्ट किए, 28 इसमें से करेक्ट हैं, 12 इसमें से गलत हैं। So this amounts to how many marks? This is 4, 24, 24 into 2, 48. So by the end of 40 questions, I have 48 marks in my hand. अभी तक भी पेपर क्लियर तो नहीं हुआ है। चलो आगे चलते हैं। Climate Action Tracker which monitors the emission reduction pledges of different countries is a. Okay, so again I went with कि भाई क्लाइमेट एक्शन है, UNFCCC इस पर बहुत काम करता है, प्योर तुक्का मारा था, गलत हो गया, ठीक है। प्योर तुक्का इसलिए नहीं मारना चाहिए। मैंने 2-3 क्वेश्चन में मारा है, उसमें से 1 तो गलत हो गया, 3 में मारा शायद अभी तक, उसमें से 2 गलत हो गए। तो प्योर तुक्का ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस में नहीं मारना चाहिए, अगर हो सके तो स्किप कर दो, कोई बात नहीं। बट मैं सोच के गया था घर से कि मैक्सिमम अटेम्प्ट करके आऊँगा, आता हो कुछ ना आता हो, अटेम्प्ट मैक्सिमम करके आऊँगा, ठीक है। ओके, द क्लाइमेट ग्रुप, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी ईजी क्वेश्चन, अगर आपको ट्रिक पता है तो। देखो मेरे को कुछ नहीं पता था इस क्वेश्चन के बारे में, 0 आइडिया था। क्लाइमेट ग्रुप इज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट ड्राइव्स क्लाइमेट एक्शन बाय बिल्डिंग लार्ज नेटवर्क्स एंड रन देम। ओके, एक पॉजिटिव लुकिंग स्टेटमेंट है, कुछ इसमें एक्सट्रीम नहीं लग रहा है, तो मैं इसको भी साइड रख देता हूँ। द IEA इन पार्टनरशिप विद द क्लाइमेट ग्रुप, 2 ऑर्गेनाइजेशंस, ला 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 ला, 2 ऑर्गेनाइजेशंस है तो गलत हो गई होगा, ठीक है। भले ही वो ऊपर वहाँ G20 वाले में काम ना किया क्योंकि वहाँ पे एंडोर्स वर्ड दे दिया, लेकिन यहाँ पे हर बार नहीं चलती ये चीज़ें। सो कट इट, सेकंड कट हुआ तो ये खत्म, आंसर आ गया। देख रहे हो, सिर्फ एक ट्रिक दिमाग लगा के यू गेट योर आंसर। बाकी देख लो अब, EP100 ब्रिंग्स टुगेदर लीडिंग कंपनीज कमिटेड टू ड्राइविंग इनोवेशन इन एनर्जी एफिशिएंसी, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, अच्छा स्टेटमेंट है। कुछ इंडियन कंपनीज इसके मेंबर हैं, अगेन सम 5 कंपनीज, 10 कंपनीज, 12 कंपनीज, कुछ नहीं बोल रहे सम, क्या पता 1 हो 2 हो, हज़ारों लाखों कंपनीज रजिस्टर्ड है इंडिया में, उनमें से कोई भी इसकी पार्ट हो सकती है। हाउ वुड यू सी कि नहीं कोई भी पार्ट नहीं है। द
इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज द सेक्रेटरिएट टू द अंडर टू कोalition. अगेन फैक्चुअल हो सकता है ना हो सेक्रेटरिएट, ये तो वेरी फैक्चुअल. तो विच आर दीज फर्स्ट एंड थर्ड आर पॉजिटिव लुकिंग स्टेटमेंट्स एंड फोर्थ इज अ जनरल स्टेटमेंट वेयर बाय companies have not been given specifically, and thus this is correct, and thus your answer is 1, 3 and 4. But this particular question can just be solved by applying a single trick, which is the two organization trick. Okay, understood? And get it correct. 2 नंबर लो, घर पे बैठ के सो जाओ. If rainforest and tropical forest are the lungs of the earth, then surely wetland would be the kidneys. And now, which of the following functions of wetland best reflect the statement above? Okay, तो क्या करती है? What is the work of the kidney? किडनी का सिर्फ इतने तो काम होता है कि जितना भी आप पानी पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें से जो भी खराब टॉक्सिक चीज़ें हैं उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दो. ओके, और फिल्टर करो. ये तो होता है किडनी का काम. बस इसमें आपको ये देखना है कि ये काम किस में हो रहा है. वाटर साइकिल इन वेटलैंड इन्वॉल्व सरफेस रन ऑफ सब सॉइल परकोलेशन एंड इवापोरेशन. क्या करें इसका वाटर साइकिल. एल्गी फ्रॉम द न्यूट्रिएंट बेस अपॉन विच फिश, क्रस्टेशियंस, molluscs, birds, reptiles and mammals thrive. Wetlands play a vital role in maintaining sedimentation balance. Aquatic plants absorb heavy metals and excess nutrients. बॉडी में तो यही काम चाहिए ना. बॉडी में आपको मैमल्स को थ्राइव क्यों कराना है? बॉडी में तो आपको ऐसे कुछ चाहिए ना. तो जो वेटलैंड्स के एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो हैवी मेटल्स और एक्सेस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ऐसे आपकी बॉडी में किडनी क्या करती है? जो भी खराब चीज़ें हैं उसको अलग कर देती है, फिल्टर कर देती है. राइट? अंडरस्टूड? सो दिस वॉज जस्ट अ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन जहाँ पे आपको बस रिलेट करना था. ये देखो मैंने लिखा भी है पेपर में, किडनी क्लीनिंग. ठीक है, बल्कि बेटर वर्ड फिल्टरिंग होता, बट इट्स ओके. ठीक है. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन मेंस एज वेल. The 24-hour mean of PM 2.5 should not exceed 15 microgram per meter cube and annual mean of something something. In a year, the highest level of ozone pollution occurred during the periods of inclement weather. PM10 can penetrate the lung barrier and enter the bloodstream. Excessive oxygen in the air can trigger asthma. So सबसे पहले फोर्थ करेक्ट है इसमें. एक्सेसिव ओजोन कैन ट्रिगर. आप बिल्कुल ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं कितनी भी ऑक्सीजन हो जाए कभी अस्थमा ट्रिगर नहीं करेगी. यू कैन नॉट से दिस, राइट? सो फोर्थ तो करेक्ट होने वाला है. तो फोर्थ करेक्ट होने वाला है, तो ये खत्म हो गया सबसे पहले. ओके, नाउ यू आर लेफ्ट विद 1, 2 एंड 3. अब इसमें देखो, यहाँ पे इस वाले में भी डेटा है और इस वाले में भी डेटा है. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 24 आवर मीन PM 2.5 का शुड नॉट एक्सीड 15 और PM 2.5 का एनुअल मीन जो है वो 5 से एक्सीड नहीं करना चाहिए. ठीक है, दो डेटा है. फिर यहाँ पे देखो इस वाले क्वेश्चन में इसने कन्वर्ट करके PM10 किया और बोला कि इट कैन पेनिट्रेट द लंग बैरियर एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम. लेकिन इससे छोटे पार्टिकल्स भी तो होते हैं. PM 2.5, PM5, PM10 तो बड़ा हो गया ना उनका कंपेरेटिवली. PM 2.5 के 4 गुना हो गया PM10. तो इसको गलत करना कितना आसान है कि आप बस PM 2.5 की जगह PM10 लिख दो. ऊपर ऑलरेडी इट वॉज डिस्कसिंग अबाउट PM 2.5. सो इसने इसी स्टेटमेंट को गलत किया. थर्ड स्टेटमेंट काटो और आपका आंसर आ गया 1 एंड 4. राइट? आई बात समझ? ठीक है. अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर पहला क्यों नहीं गलत काटा. हाँ तो ठीक है, मतलब उस पर भी आपका दिमाग जा सकता है. द 24 आवर मीन ऑफ PM 2.5 शुड नॉट एक्सीड. लेकिन जैसे मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि जब भी ऐसी चीज़ें आती हैं, नॉट मोर देन दिस, अप टू दिस, शुड नॉट एक्सीड दिस, ये एक रेंज की चीज़ें हैं. तो जैसे 15 हो गया तो यहाँ पे रेंज हो गई ना 0 से 15. 5 हो गया तो रेंज हो गई 0 से 5. ओके, सो इस तरीके से बाय दैट रेंज वाला थिंग आई डिडंट मार्क इट एज इनकरेक्ट. एंड थर्ड स्टेटमेंट वॉज वेरी इजी टू बी मेड इनकरेक्ट. इसको इनकरेक्ट बनाना बहुत ही आसान था. यू जस्ट हैड टू चेंज बिटवीन PM10 एंड PM 2.5 या PM5 फॉर दैट मैटर. ओके, एंड दैट इज वाई कट इट डाउन. लेकिन ठीक है, आपका गलत हो सकता है पेपर में, दैट्स ओके. मेरा भी गलत हो सकता था ये, एंड दैट इज ओके. ओके, विद रेफरेंस टू गुच्ची समटाइम्स सीन इन न्यूज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इट इज अ फंगस. इट ग्रोज इन सम हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज. इट इज कमर्शियली कल्टिवेटेड इन द हिमालयन फुटहिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. ओके, सो with reference to, ठीक है, it is a fungus. It grows in some Himalayan forest areas. It is commercially cultivated in the Himalayan foothills of northeastern India. So now I thought that it grows in some Himalayan forest. ये तो करेक्ट ही होना चाहिए क्योंकि थोड़ी किसी फॉरेस्ट एरिया में तो हो ही सकता है. हिमालयन फॉरेस्ट एरिया में इतना बड़ा फॉरेस्ट एरिया जाके चेक थोड़ी करेगा एग्जामिनर टॉर्च लेके कि उग रहा है कि नहीं उग रहा है. तो सेकंड तो करेक्ट होना चाहिए. सेकंड करेक्ट होना चाहिए तो ये दो एलिमिनेट हो गए. अब ये दो एलिमिनेट हो गए तो आंसर तो मार्क करना ही है. तो या तो फर्स्ट ठीक है या तो थर्ड ठीक है. मुझे लगा फंगस को गलत करना बहुत आसान है. फंगस नहीं, मशरूम हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा. मुझे लगा इसको गलत करना बहुत आसान है तो शायद यही गलत किया होगा, तो मैंने 2 और 3 मार्क कर दिया. लेकिन पता चला कि
1 एंड 2 ही था इसका आंसर, ठीक है। और दूसरी मुझे ये सोचना चाहिए था यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में कि इसने पहले तो इसको बड़ा किया, फिर इसको लिमिट कर दिया बोल के कि सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में होता है ये। तो मुझे इस तरीके से अगर मैं हल्का सा सोचता तो शायद इसको करके ले जाता, बट वही बात है, आप ये देखते हो कि कौन सा स्टेटमेंट आराम से गलत किया जा सकता है। तो इट इज़ अ फंगस को बहुत आराम से गलत करना है इज़ वेरी ईजी। क्या पता है मशरूम हो, क्या पता है क्या हो, भगवान जाने, कुछ और ही हो ये, राइट। सो ये मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। देखो, विद रेफरेंस टू पॉलीइथाइलिन टेरिफ्थलेट। अब देखने में लग रहा है भाई क्या पूछ लिया, तो डर जाएंगे, लेकिन डरना तो है नहीं हमें, हम तो शेर लोग हैं। इट्स फाइबर्स कैन बी ब्लेंडेड विद वूल एंड कॉटन फाइबर्स टू रीइंफोर्स देयर प्रॉपर्टीज। कैन बी करेक्ट होना चाहिए। कंटेनर्स मेड ऑफ इट कैन बी यूज टू स्टोर एनी अल्कोहलिक बेवरेज। इसका कंटेनर कोई भी दुनिया की अल्कोहलिक बेवरेज स्टोर कर लेगा, कोई भी, चाहे कितने भी कंसंट्रेशन की हो, 100% कंसंट्रेशन की क्यों ना हो, स्टोर कर लेगा, रिएक्ट ही नहीं करेगा उसके साथ। अब इट ऑफ एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट, बोटल मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल्ड इनटू अदर प्रोडक्ट्स। ठीक है, रिसाइकल कर सकते हैं, रिसाइकलिंग अच्छी चीज़ है। कैन बी एक्सट्रीम नहीं लिख रहा, कुछ एक्सट्रीम नहीं लिख रहा इसमें, तो फर्स्ट ठीक लग रहा है, थर्ड ठीक लग रहा है। अब फोर्थ देखो, आर्टिकल्स मेड ऑफ इट कैन बी इजीली डिस्पोज्ड बाय इंसाइनरेशन विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, विदाउट कॉजिंग। ऐसे सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला, एनी अल्कोहलिक बेवरेज, यही चीज़ें दिक्कत करती हैं। आराम से पॉजिटिव स्टेटमेंट बना सकता है एग्जामिनर, लेकिन फिर उसमें ज़बरदस्ती करेगा। और आपको ऑप्शन देख के पता चल रहा है कि आपको 4 में से 2 करेक्ट करने हैं, तो सबसे आसानी से 2 करेक्ट करने वाले कौन से हैं इसमें, बताओ मुझे। फर्स्ट एंड थर्ड ही है ना, राइट। तो यही आपके आंसर है। तो जब आप एग्जाम में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लोगे तो रेयरली ही आपकी कोई गलती होगी। ओके जी, ठीक है, चले आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड, गोल्डन मैसी, रिपीटेड क्वेश्चन, पीवाईक्यू से करा चुका हूँ मैं ऑलरेडी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स, अल्फा अल्फा, अमरनाथ, चिकपी, क्लोवर, पोर्सिलेन एंड स्पिनच। इसमें से नाइट्रोजन क्या क्या फिक्स करता है। ओके, सो मुझे ये समझ में आ रहा था इसमें कि ये फिफ्थ एंड सिक्स, चिकपी थर्ड तो होना चाहिए। चिकपी आई वॉज श्योर अबाउट कि भाई ये दाल होती है, दाल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, पल्सेस वगैरह, तो ये तो आंसर में होना चाहिए। तो मैंने सी काट दिया, डी काट दिया। अब 2 बचे, इन 2 में से मुझे एक को अटैम्प्ट करना था, मैंने बी वाला अटैम्प्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 1 3 ये तो कॉमन ही थे। तो या तो 4 ओनली होना था या 5 एंड 6 होना था, तो या तो क्लोवर होना था या कोल्फा एंड स्पिनच होना था। तो मुझे लगा ठीक है, अब एक तो अटैम्प्ट करना ही है, इसमें कर दिया, गलत हो गया, कोई बात नहीं। कुछ क्वेश्चन तो गलत होंगे, कुछ 50-50 पे आके ठीक होंगे, कुछ 50-50 पे आके गलत होंगे, तो ये वाला मेरा गलत हो गया। Bioelectric rock technology is talked about in which one of the following situations? Restoration of damaged coral reefs, development of building materials using plant residue, identification of areas for exploration, extraction of shale gas, and providing salt licks for wild animal in forest or protected areas. तो बायो रॉक टेक्नोलॉजी, अब ये जानबूझ के ऐसे कर रहा है। देखो ये गलत हो सकता है क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या मार दोगे यहाँ पे, बिल्डिंग मटेरियल यूजिंग प्लांट रेसिड्यू, कि रॉक है और प्लांट है तो ये बायो होगा, तो बायो रॉक ऐसे करके। एंड अगर आप ये सोच के कर रहे हो तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप गलत कर रहे हो, इट्स ओके, ठीक है, इट इज़ ओके, क्योंकि आपकी थॉट प्रोसेस ठीक है। नीचे के दोनों तो बकवास हैं, वो तो नहीं मारने। तो रेस्टोरेशन ऑफ डैमेज्ड कोरल रीफ इसका आंसर था, पता नहीं मुझे कैसे पता था ये, बट पता था, ठीक है। बायोलॉजिक टेक्नोलॉजी को हम शायद गल्फ ऑफ मन्नार वगैरह में यूज़ कर रहे थे ठीक करने के लिए कोरल रीफ्स को। तो बायो रॉक, तो जो कोरल रीफ्स खराब हो गई है उनको आप कैसे ठीक करें, वी वर डिस्कसिंग अपॉन दैट। सो इट्स ओके इफ यू आर गेटिंग दिस स्टेटमेंट एज this question as incorrect, then also it's okay, ठीक है। So this was my 34th question, right? Yeah. The Miyawaki method is well known for the creation of mini forest. ये बहुत सालों से न्यूज़ में है, ऐसा कुछ नहीं है, जापानीज मेथड है। इन्होंने अर्बन एरियाज में कैसे मिनी फॉरेस्ट बनाए जाए वो ये बताते हैं, सो ये कुछ नया नहीं है। एंड दिस आई मार्क्ड इट एज करेक्ट। सो फाइनली government were divided into reserved and transferred. Which of the following were treated as reserved subjects? अब देखो, reserved subjects पे एक क्वेश्चन पूछ लिया था 2018 में। अब ये उस टाइम क्या पूछा था कि रिजर्व सब्जेक्ट्स जो हैं वो किसके अंडर थे। तो रिजर्व सब्जेक्ट्स अब इसने कैसे पूछ लिया कि उनमें रिजर्व सब्जेक्ट्स थे कौन से। अब देखो, व्हेन यू डू नॉट नो कि भाई इसका एग्जैक्टली क्या आंसर है तो उसको कैसे अप्रोच करते हैं, मैंने कैसे अप्रोच किया। देखो, सबसे पहले रिजर्व सब्जेक्ट्स का मुझे ये पता है कि ये गवर्नर जनरल के अंडर थे, ठीक है। उस टाइम पे इनको डी लेजिस्लेट नहीं, मतलब नीचे डेलीगेट नहीं किया गया था। ओके, सो दीज वर इंपॉर्टेंट, दीज सब्जेक्ट्स वर इंपॉर्टेंट, द रिजर्व सब्जेक्ट्स वर इंपॉर्टेंट। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इन चारों में वो देख लो, जो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये देखो मैंने क्या लिखा है सबसे पहले यहाँ पे 3 आउट ऑफ 4। सबसे पहले मैंने ऐसे मार्क किया और लिखा 3 आउट ऑफ 4 की जो ऊपर 4 दिए हैं इसमें से 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो देख लो। जस्टिस, लैंड रेवेन्यू या फिर रेवेन्यू एंड पुलिस। जस्टिस, रेवेन्यू, पुलिस, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज समथिंग लाइक
कि ठीक है हमें स्टेट्स को एम्पावर करना है, हमें लोकल लेवल पे एम्पावर करना है, बट सेंटर के लिए, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं? जस्टिस सही रहे ताकि उनके खिलाफ कोई रिवोल्ट ना हो, रेवेन्यू उनके पास रहे ताकि वो पूरा खून चूस सके हमारा, एंड पुलिस उनके पास रहे। एंड यही आपका आंसर है। सो मैं हमेशा यही चीज़ बोलता हूँ, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ रखा है आपने हिस्ट्री में भी, तब भी आप कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो, इवन इफ यू डू नॉट नो द फैक्ट्स। तो क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। इन मिडाइवल इंडिया द टर्म फनम रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग? फनम जो था वो वर्ड किसके लिए यूज होता था इन मिडाइवल इंडिया? अब मुझे आइडिया तो कुछ था नहीं, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, एकदम आइडिया नहीं था, तो दिस इज अ गेस। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया, कंप्लीट गेस वर्क किया, मुझे कोई आइडिया नहीं था। ठीक है, अब ये देखो मैंने किया कैसे। यूपीएससी इन चारों चीजों में से किस चीज के ऊपर क्वेश्चन पूछता है? एंशिएंट में पूछे, यहाँ पे पूछे, जनरली यूपीएससी अगर पूछता है तो कोइंस के ऊपर पूछता है, एटलीस्ट इन चारों में। तो अगर यहाँ पे होता मेजरमेंट, अगर यहाँ पे होता पोर्ट, अगर यहाँ पे होता रेवेन्यू से रिलेटेड कुछ, तो मुझे कंफ्यूजन होता, बट ये सब है ही नहीं। आज तक कभी मिडाइवल इंडिया या एंशिएंट इंडिया की क्लोथिंग पे क्वेश्चन नहीं पूछा, ऑर्नामेंट्स पे क्वेश्चन नहीं पूछा, वेपन्स पे क्वेश्चन नहीं पूछता। कोइंस पे यूपीएससी ने प्री में भी पूछा है, मेंस में भी पूछा है। इसका मतलब क्या है कि यूपीएससी इस चीज़ को इंपॉर्टेंस देता है। सो जब आप सोच के गए हैं कि आपको हाई अटेम्प्ट करना है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से गेस करते हैं? आप ये देखते हैं कि यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चंस पूछता है, एंड देन यू मार्क देम। ठीक है, ये एक छोटा सा सिक्का हुआ करता था, बहुत कम इसका वेट हुआ करता था, फनम। ओके, चलें आगे। कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि मेरा बिल्कुल भी कुछ रिवाइज था नहीं, तो अब देखो ये कितना सिंपल क्वेश्चन में गलत करके आया, जो आप सब लोग ठीक कर सकते हो, तो आप तो मेरे से ज़्यादा स्कोर करके आओगे। लुक एट दिस, व्हाट इज द क्वेश्चन है? कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स। 3 फ्रीडम फाइटर्स के नाम दिए हैं और कहा है विच ऑफ द अबव वर एक्टिवली एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी। इनमें से कौन एक्टिवली एसोसिएटेड थी विद द गदर पार्टी? और आई एंडेड अप मार्क डूइंग अ ब्लंडर, मुझे इसमें कुछ याद नहीं आ रहा था। सो मुझे ये तो लगा कि ऐसा हो सकता है कि एटलीस्ट 2 तो इनमें से हों। सो आई कट द 111 और मुझे लगा कि बरिंद्र कुमार घोष तो होने ही होने चाहिए, पता नहीं क्यों लगा ऐसा, भगवान जाने, बट कोज आई हैड टू लाइक मार्क इट। सो मैं इसके साथ गया एंड आई एंडेड अप गेटिंग इट रॉन्ग। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया गलत। विद रेफरेंस टू प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी देखो ये मेरे सारे क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्यों गलत हो रहे होंगे अब, क्योंकि मैंने रिवाइज ही नहीं किया, और ये आपके लिए कितने आसान है क्योंकि आप तो रिवाइज करके गए हो सारा। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज एज वेल एज द प्रिंसली स्टेट्स। अब वैसे ये आसान है, अगर अभी मैं देखूँ तो आसान है, लेकिन क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में बिना रिवाइज किया गया था तो इनकरेक्ट लगा। ओके, यहाँ पे क्या था, पार्टली इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज एंड पार्टली नॉमिनेटेड। अब ये इतना सिंपल था, बट क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल के प्रेशर में हर किसी से गलती हो सकती है, तो वही गलती सेम मेरे से हुई। अभी देखो ये कितना आसान है, यहाँ पे लिखा है इसने नॉमिनेटेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज। प्रोविंशियल असेंबलीज तो इलेक्ट करेंगे ना, ये तो कितना सिंपल था, कितना सिंपल था ये, बट स्टिल दिस वाज अ मेजर ब्लंडर दैट आई डिड। आप देख रहे हो बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, इस सब के बावजूद भी मैंने 116 प्लस स्कोर किया है। ऊपर पहले वाले पार्ट में आपको दिखा चुका हूँ मैंने 3 कितने बड़े ब्लंडर किए थे। चौथा ब्लंडर ये देखो भाई, चलो ठीक है, इसको मैं ब्लंडर नहीं मानूंगा कि ये मेरी नॉलेज की कमी है, ये मुझे याद नहीं है, मैंने रिवाइज नहीं किया था, लेकिन ये तो ब्लंडर है ना, ये तो सारी दुनिया को पता है कि प्रोविंशियल असेंबली से जो लोग थे वो इलेक्ट होकर आए थे। पर ध्यान से ना पढ़ना, डर जाना हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देख के, ये सोचने लगना कि मैंने रिवाइज नहीं किया था, इन्हीं की वजह से गलतियाँ होती हैं। सेकंड स्टेटमेंट मैंने ठीक मारा, दोनों में मारा, या आंसर होना चाहिए था इसका बस 2 ओनली, पहला तो बिल्कुल ही गलत है, राइट। तो मैं 50-50 तक पहुंचा, लेकिन आई एंडेड अप मार्किंग इट रॉन्ग एंड गेटिंग इट इनकरेक्ट। तो आप ये गलती क्या सीख रहे हो यहाँ से आज आप, कि इवन दो अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ये लग रहा है कि आपको उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, तब भी यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग टेक्स्ट: नेति पकरन, परिशिष्ट पर्वन, अवदना शक्तक, त्रिशस्तिलक्षण, महापुराण। गॉड कितने टफ हैं यार। इसमें पूछ रहा है कि इनमें से जैन टेक्स्ट कौन कौन से हैं। अब मुझे थोड़ा सा इसमें चलो एडवांटेज था क्योंकि मुझे हल्का सा आइडिया था, क्योंकि जो ये त्रिषष्टि लक्षण पूछ रहा है ना, दिस लक्षण वर्ड इज यूज इन जैनिज्म। एक इंपॉर्टेंट पर्व होता है, क्योंकि इसने पूछ लिया तो बता देता हूँ, ऐसा ना हो कि आपका रिपीट हो जाए। देयर इज एन इंपॉर्टेंट पर्व कोड द 10 लक्षण पर्व। तो ये 10 दिन तक चलता है, हर दिन का अलग एक इंपॉर्टेंस होता है, जैसे नवरात्रि होता है ना वैसे ही होता है। सो मुझे लगा कि उसी से रिलेटेड ये कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे त्रिषष्टि ऐसा कुछ दे रखा है एंड लक्षण दे रखा है, तो मुझे लगा कि शायद वैसा कुछ होगा। सो मुझे लगा कि ठीक है 4 तो आंसर में होना चाहिए, एंड देन दिस वॉज समथिंग दैट आई हैड रेड। तो ऐसे मैं अपने आंसर तक पहुंच गया एंड आई गोट इट करेक्ट। तो देख रहे हो, मतलब ऐसे ऐसे फनम जैसे और ऐसे क्वेश्चंस में ठीक करके आया हूँ, और जो इजी क्वेश्चंस हैं बिल्कुल, जो मतलब चुटकियों में ठीक कर लोगे आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके, 53, 54 ऐसे में गलत करके आया हूँ। तो एक ही बात है, कोई बात नहीं, टफ ठीक हो गए, एक ही बात है, इसलिए आखिर में स्कोर ठीक रहा। लेकिन आपको जो ये मैं ब्लंडर्स करके आया हूँ, ये आपको नहीं करने हैं,
आपका स्कोर बहुत अच्छा आने वाला है। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स आर्यदेव, दिग्नाग एंड नाथमुनि। और अब इन्होंने पूछा है कि इनमें से ये कौन से थे, ये आपको मैच करवाना है। ठीक है, तो अगेन आइडिया तो था नहीं। अब यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ यहाँ पे, चलो मैंने ये वाला क्वेश्चन तो गलत कर दिया, लेकिन इसके आगे ना आप देखोगे कि मैंने रेयरली ये पेयर वाले क्वेश्चन आ गए थे, मैंने अभी तक तो चलो ठीक है जो एक दो क्वेश्चन है वो गलत किए, ये वाला गलत किया था और एक और गलत किया था, ऊपर जाके देखना पड़ेगा वो। लेकिन इसके बाद ना मुझे चीज़ समझ में आ गई कि ये ना पेयर वाले में करना क्या है। और आप देखोगे कि इसके बाद शायद ही मेरा कोई पेयर वाला क्वेश्चन गलत हुआ है। क्या समझ में आई है मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनना। ठीक है, मैं क्यों कहता हूँ कि सारा गेम एप्टीट्यूड का है। इसने क्या किया है, 4 ऑप्शंस दिए हैं ना, कहाँ गया ये देखो। ठीक है, इसने यहाँ पे 3 पेयर दे रखे हैं, 1 2 3, आगे शायद कुछ में 4 पेयर भी होंगे, है ना, 4 पेयर वाले भी है ना शायद। अभी चलो अब देख लेंगे कितने पेयर वाले आएंगे, बट हैं शायद 4 पेयर वाले भी। हाँ देखो, जैसे ये है ओनली 4 पेयर टाइप। ठीक है, तो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल 4 ऑप्शन हैं आपके पास, A B C D। अब ये कह रहा है यहाँ पे कि इसमें से आप ये बताओ कि ये ओनली नन ऑफ द पेयर, ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर करना है। ठीक है, पहले चलो ऐसा मान के चलते हैं कि 3 ही पेयर हैं आपके पास। अब इसमें से आपके क्या क्या कंडीशन बन सकती हैं, इनमें से एक भी करेक्ट ना हो, इसकी एक कंडीशन बन सकती है। इनमें से कोई एक करेक्ट हो, उसकी ये कंडीशंस बन सकती हैं 3, राइट। इनमें से कोई 2 करेक्ट हो, उनकी कितनी कंडीशंस बन सकती हैं, AB BC एंड AC। ठीक है, और इनमें से तीनों करेक्ट हो, इसकी भी सिर्फ एक ही कंडीशन बन सकती है, राइट। ये चीज़ मुझे समझ में आ गई थी। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है कि टोटल आंसर इस पर्टिकुलर केस में कितने हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 केसेस हो सकते हैं। इन 8 में से 6 केसेस ऐसे हैं जो ये कहते हैं ईदर द आंसर विल बी ओनली 1 पेयर और ओनली 2 पेयर। तो अगर मुझे तुक्का मारना ही है ऐसे किसी केस में, तो मैं या तो ओनली 1 पे मारूंगा या ओनली 2 पे मारूंगा। बात समझ में आई, क्योंकि 8 में से 6 कंडीशंस ये हैं। अब देखो, अगर सपोज करो ये 4 हो गया आपका, इसको 4 कर दो, A B C D। ठीक है, तो इसमें देखो अब ये कि एक भी करेक्ट ना हो, इसका सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है। एक करेक्ट हो इसका A, ऐसे B, ऐसे C, ऐसे D, इसके कितने तरीके हो सकते हैं, 4 तरीके हो सकते हैं। अब देखो 2 वाले कितने हो सकते हैं, AB BC CD, AC AD, ऐसे BD और ऐसे CD तो आ गया, आई गेस आ गए सब 6 तरीके हो गए। अब देखो 3 के करेक्ट वाले कितने हो सकते हैं, ABCACD एंड ABD, सिमिलरली BCD करेक्ट एंड और कुछ बचा CBD तो चलो आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसके 4 केसेस हो सकते हैं। ओके, एंड सारे के सारे करेक्ट हो, उसके कितने केस होंगे, उसका सिर्फ एक केस होगा, ABCD, राइट। तो जब मैंने ये देखा तो मुझे ये समझ में आया कि सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी अगर किसी चीज़ की है तो वो ये है कि ओनली 2, क्योंकि इसके 6 केसेस बन रहे हैं, 6 केसेस बन रहे हैं इसके। तो अगर मुझे मारना ही है, इफ़ आई हैव टू गो विद इट, तो आई विल गो विद ओनली 2। यहाँ पे मैंने ये चीज़ फिगर आउट कर ली थी कि सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी अगर 3 वाला केस है तो उसमें प्रोबेबिलिटी होगी या तो ओनली 1 की या ओनली 2 की, मतलब ओनली 1 पेयर या ओनली 2 पेयर। और अगर 4 वाला केस है तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है ओनली 2 पेयर की। तो ओनली 2 पेयर की ओवरऑल प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो अगर मैं सारे के सारे जितने क्वेश्चंस हैं, मान लो 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं, सब में ओनली 2 मार्क किया हूँ, तो बहुत हाई चांस है कि इनमें से 7 ठीक हो जाएंगे। और मान लो मेरे 3 गलत भी हो गए, ठीक है, तो भी नेट कितना आ रहा है, 12 स्कोर आ रहा है। अब ये चीज़ मैंने पेपर में थोड़ी लेट फिगर आउट करी, इसलिए मेरे इनिशियली 2-3 क्वेश्चंस गलत हो गए, नहीं तो ये स्कोर मेरा कम से कम 130 होता। ओके, अब आप मेरे से पूछोगे कि अगर इस साल ये वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो मुझे क्या करना है। अब देखो, मुझे पहली बात तो लगता नहीं है कि इस साल ये आएंगे, और मैं कह रहा हूँ चलो आ भी जाते हैं, यूपीएससी एक ट्रेंड को कुछ टाइम चलाता ही है। अगर आ भी जाते हैं तो सबसे पहले ट्राई करो कि नॉलेज से कितना कर पाते हो। ओके, जैसे इस पर्टिकुलर केस में अगर देखोगे तो ये सबको पता है कि जो दिग्नाग हैं वो बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं, ठीक है, ये बात क्लियर है हमें। तो यानी कि नन ऑफ द अबव तो नहीं होगा, तो ये वाली प्रोबेबिलिटी भी कम हो गई। ओके, तो अब क्या है, अब इन दोनों के होने की है 6/7, समझ रहे हो, और इसकी सिर्फ 1/7। तो मैं क्यों मार रहा हूँ, वाई एम आई मार्किंग दिस। तो अब मैं अगर कुछ मारूंगा तो इन दोनों में से ही मारूंगा ना, ओनली 1 या ओनली 2 में से, अगर मुझे गैस ही मारना है तो। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है हाउ इज दिस पूरा सी सेट वर्किंग। और आप देखोगे अगर तो इसका आंसर भी यही है, ओनली 2 पेयर्स। तो जितना क्लोज जा सको नॉलेज से जाओ, और अगर आपको लगे कि आपकी नॉलेज की जो लिमिट है वो एग्जॉस्ट हो रही है तो फिर इस चीज़ को आप लगा सकते हो। लेकिन मैं ये आपको गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि इस बार भी एज इट इज़ होने वाला है।
ओके, आई होप यू आर क्लियर विथ दिस। लेकिन स्टिल अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो पेपर में तो यू कैन डू दिस। विद रेफरेंस टू नेक्स्ट चले, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया हैपेंड इन द रेन ऑफ जलालुद्दीन खलजी। ठीक है, फिर अगेन मुझे ठीक है नहीं, मुझे हिस्ट्री नहीं याद आ रही थी। आई डोंट नो वाई डिड आई लाइक इवन अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस, ये भी मैंने गलत किया है। तो आपको हिस्ट्री अपनी ठीक से करके आनी है, मेरे से बेटर ही करके आओगे आप, और मेरे से बेटर करके आओगे तो मेरे से बेटर स्कोर भी करके आओगे। ठीक है, नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री वन ऑफ द फॉलोइंग हु ऑफ द फॉलोइंग वर नोन एज कुल्हा धारन। इनमें से किनको कुल्हा धारन बोलते हैं। ठीक है, अब मुझे इतना समझ में आ रहा था कि यहाँ पे एटलीस्ट जो आंसर है वो पर्शियन कैलीग्राफिस्ट नहीं होगा, क्योंकि कुल्हा धारन धारन करके कुछ बोल रहा है तो ये कुछ धारण करते हैं, राइट। एंड देयर वर टू सिमिलर लुकिंग थिंग्स, कलंदर एंड सैयद्स। इनका कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअल एंगल होता है दोनों का। तो मुझे ये लग रहा था कि बी और डी में से आंसर होना चाहिए, और मैंने अगर मार दिया होता तो देखोगे अगर आप, तो मैं लास्ट में डी तक पहुंचा भी हूँ, यू कैन सी दिस मार्क, तो मैं डी तक पहुंचा भी हूँ लास्ट में, लेकिन आई एंडेड अप स्किपिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये पहला क्वेश्चन था जो मैंने स्किप किया था, दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, और ये मुझे मार देना चाहिए था। मार देता तो यहाँ पे 2 नंबर और हो जाते, क्योंकि आई रीच्ड अप टू द आंसर, यही आंसर था। With reference to Indian history, consider the following statement: the Dutch established their factory or warehouses on the east coast on land granted to them by the Gajapati rulers. अभी देखो ये फिर वही मैं गलती करके आया हूँ, आई शुड हैव इधर स्किप्ड इट, क्योंकि हिस्ट्री बिल्कुल रिवाइज करी ही नहीं थी, तो अगेन सी आई गॉट इट इनकरेक्ट, राइट। बट ये देखो फिर, अब ये टफ क्वेश्चन है तो द हार्डर दे लुक द ईजियर दे फॉल, या ठीक हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू कौटिल्याज अर्थशास्त्र, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? अ पर्सन कुड बी अ स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट। ठीक है, तो हाँ हो सकता है, हमें क्या पता। इफ अ फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर अ सन, शी वॉज लीगली फ्री। इफ अ सन बोर्न टू अ फीमेल स्लेव वॉज फादर्ड बाय हर मास्टर, द सन वॉज एंटाइटल्ड टू द लीगल स्टेटस ऑफ द मदर मास्टर सन। अब मुझे थोड़ा बहुत डाउट इसमें आया अभी, बट देन आखिर में मुझे लगा ठीक है जाना चाहिए इसके साथ। मैंने मार्क भी किया कि एंटाइटल्ड हो सकता है गलत हो, बट देन आई थॉट कि नहीं, एग्जामिनर के पास इतना वक्त और इतना रिसोर्सेज नहीं है कि वो पूरा कौटिल्य का अर्थशास्त्र पलट के देखे। लेट अस गो विद 1, 2 एंड 3, एंड ये मेरा क्या हो गया, ठीक हो गया, करेक्ट। सो by the end of 60 questions I was standing at 39, 20 and 1। 39 ठीक थे, 20 गलत थे, और एक जो है वो स्किप किया था। और ये 20 में आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा ये हिस्ट्री के गलत हुए हैं, लगभग 4-5 क्वेश्चंस। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ओके, अब इकॉनमी आ गया। यहाँ तो गलत होना बहुत ही मुश्किल है, यहाँ तो ठीक ही चलेंगे मेरे, क्योंकि मेरे को पता है कि इकॉनमी मैंने जैसे आप लोगों को पढ़ाई है वैसे खुद पढ़ी है, तो इकोनॉमी के क्वेश्चंस आपके भी गलत नहीं होंगे अगर आपने वो पढ़ी है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, विश्वास करके जाना, जो चीज़ें पढ़ाई हैं कर आना, नहीं होंगे गलत। ओके, पहला है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द यूएस फेड रिजर्व कुड लीड टू कैपिटल फ्लाइट, है ना। तो यूएस ने अगर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी करी है तो इससे कैपिटल फ्लाइट हो सकती है। मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ ये। अगर यूएस में पैसे को वो करने लगे, टाइट करने लगे, तो क्या होगा, डॉलर को टाइट करने लगेंगे तो डॉलर की डिमांड वहाँ पे मार्केट से हट जाएगी, मतलब डॉलर सक कर लिया जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ने लगेगा, तो जो यहाँ के लोग हैं वो वहाँ पे अपना पैसा डालने लगेंगे, क्योंकि बेटर इंटरेस्ट रेट उनको मिलेगा। पूरा कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ, करेक्ट है। कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट कॉस्ट ऑफ फर्म्स विद एक्जिस्टिंग ईसीबीज, ये सेम टू सेम चीज़ हो गई, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेज द करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विद ईसीबीज, ये कल परसों पढ़ाया था मैंने पिछले लेक्चर्स में ही, कि अगर मसाला बॉन्ड होता है, रुपी डिनोमिनेटेड होता है, तो रिस्क किसके ऊपर होता है, नहीं तो रिस्क उसके ऊपर होता है। डिवैल्यूएट हो गई करेंसी तो किसके ऊपर रिस्क होगा, पूरा पढ़ा चुका हूँ। सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट वाज इनकरेक्ट, ये आपका ठीक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन हो गया करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हाउ मैनी ऑफ द अबाउ आर जनरली नोन एज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। अब देखो यहाँ पे मुझे ये समझ तो आ गया था कि या तो इसका ओनली 2 मारो या तो ओनली 3 मारो। ठीक है, तो आप देखोगे मैंने सबसे पहले ओनली 1 काट दिया, ओनली 4 काट दिया, ओनली 2 मार दिया, लेकिन बाई चांस जो 1-2 क्वेश्चंस गलत होने थे इस पेयर के, उसमें से ही ये था, राइट। यहाँ पे आंध्रा, केरला, हिमाचल और त्रिपुरा पूछ रखा था, और इनमें से कौन सी टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं ये पूछ रखा था। तो मुझे ये पता था कि हाँ चलो त्रिपुरा तो है, दिस आई वॉज श्योर ऑफ। केरला का आई वॉज श्योर ऑफ कि ये दोनों तो है, बट आई वॉज कन्फ्यूज बिटवीन आंध्रा एंड हिमाचल। बट मुझे हिमाचल मारना चाहिए था, क्योंकि मंडी में जो है वो टी उगती है, और इसका मुझे आइडिया था भी, क्योंकि मेरा हिमाचल घूमा हुआ है। बट अगेन दैट्स ओके, एग्जामिनेशन हॉल में आप कुछ गलतियाँ करके ही आओगे, एंड इट डजंट मैटर। चलो अगला देखो, इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। वही क्या है, इसने एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन दी है, उसको गलत करेगा ये, तो मैंने देखो वही गलत मार रखा है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख भी रखा है यहाँ पे, तो ये इनकरेक्ट हो गया। इसके इनकरेक्ट होते ही मेरा आंसर आ गया, सो दिस इज करेक्ट। विद रेफरेंस टू बैंक बोर्ड ब्यूरो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखो ये वाला पूरा मैंने यहाँ पे सॉल्व भी कर रखा है, जो 61 का क्वेश्चन है ना, कि अगर करेंसी ऐसे आएगी वैसे जाएगी तो क्या होगा। विद रेफरेंस टू बैंक बोर्ड ब्यूरो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज द चेयरमैन ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो।
ठीक है, समझ में आ गया कि यही गलत होने वाला है। बैंक बोर्ड ब्यूरो रिकमेंड फॉर द सिलेक्शन, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीटेड है। बैड क्या लिखा है, बैंक बोर्ड ब्यूरो हेल्प्स द पब्लिक सेक्टर बैंक इन डेवलपिंग स्ट्रेटेजीज एंड कैपिटल रेजिंग प्लान, ये जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीटेड है, ये वाला गलत होना ही है। गवर्नर ऑफ आरबीआई को बोल दिया चेयरमैन ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो, तो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड योर आंसर इज 2 and 3। सो यहाँ पे ये आपका आंसर हो गया। विद रेफरेंस टू कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, as there is an option to exchange the bond for equity, convertible bonds pay a lower rate of interest। देख रहे हो आप, मतलब अगर आप सही से पढ़ के गए हो ना, तो आप एग्जामिनर का माइंड सेट एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के पढ़ के आओगे। अगले में पूछ रहा है, द ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी अफोर्ड्स द बॉन्ड होल्डर अ डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस। अब ये तो ठीक है, तो मैं पढ़ा ही चुका हूँ आपको। द ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी अफोर्ड्स द बॉन्ड होल्डर अ डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू द राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस, की आप जो है वो अपनी उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी मैंने रिसेंटली आपको पढ़ाया था पूरा का पूरा कन्वर्टेबल बॉन्ड वाला सिस्टम, तो उस टाइम में मैंने आपको यही समझाया था कि इनके पास क्या ऑप्शन होता है कि अपने डेट को अपनी इक्विटी में मतलब इक्विटी में कन्वर्ट करवा ले। तो इससे क्या होगा कि कुछ भी अगर इशू होने वाला है, कंज्यूमर प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, इन्फ्लेशन आने वाली है, उनका बॉन्ड का जो वो है वो वीक होने वाला है, अगर कुछ भी ऐसा होने वाला है तो दे विल बी सेफ। एंड यहाँ पे क्या दे रखा है, एज देयर इज एन ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर इक्विटी, इनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कम होता है। ये भी मैंने अभी आपको रिसेंटली पढ़ाया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2। भगवान जाने में इसका 2 ओनली क्यों मार के आऊँ, बट बहुत ईजी है। पता नहीं मैं मार के भी आया हूँ कि नहीं मार के आया हूँ, क्योंकि बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है ये, वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चन इन द पेपर। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है, बट क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी ये कर रखा है क्लिक, तो मैंने इसको मान लिया है, बट मोस्ट प्रॉब्लम इसको ठीक ही करके आया हूँ। दैट इज़ वाई मैंने बताया था कि मेरा रेंज में अभी कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग, इंडिया इनमें से किसका मेंबर है। बहुत सिंपल है ये, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, रिपीटेड फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, MTCR, SCO सब कुछ रिपीटेड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, इस पे देखो। अब सबसे पहले क्या स्टेटमेंट है, वियतनाम हैज़ बीन, हाँ देखो ये अभी देखो टफ लग रहा है, लेकिन ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा, अब देखो, वियतनाम हैज़ बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड इन द रिसेंट ईयर्स। क्या पढ़ाया मैंने आपको इस सब के बारे में, रिसेंट ईयर्स वन ऑफ द, कैसा आएगा तो ठीक होगा। वियतनाम इज लेड बाय मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम, मान लो मुझे नहीं पता, इसको रखो अभी। वियतनाम से इकोनॉमिक ग्रोथ इज लिंक्ड टू इट्स इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल सप्लाई चेन्स एंड फोकस ऑन एक्सपोर्ट। ग्लोबल सप्लाई चेन है, फोकस ऑन एक्सपोर्ट है, पॉजिटिव चीज़ दे रहा है। फॉर अ लॉन्ग टाइम वियतनाम्स लो लेबर कॉस्ट एंड स्टेबल एक्सचेंज रेट्स हैव अट्रैक्टेड ग्लोबल मैन्युफैक्चर्स। देखो लिखा भी है मैंने, दिख रहा है ये कि पॉजिटिव लिख भी रखा है, तो हाँ वियतनाम को इसने अट्रैक्ट किया है। वियतनाम हैज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव ई सर्विस सेक्टर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। अगेन मैं इसको डाउट की कैटेगरी में रख रहा हूँ, तो मुझे ये पता है कि 1, 3, 4 ठीक हो रहे हैं, एंड 1, 3, 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ये देख लो आप। सबसे पहले मैंने देखा कि एटलीस्ट मेरा 1 ठीक होना चाहिए, 1 ठीक होना चाहिए, तो 2 खत्म हो गए। फिर मैंने देखा कि 3 ठीक होना चाहिए, तो ये भी खत्म हो गया, तो इसी से आंसर आ गया। मैं बोल रहा था ना आपको, जब भी ऐसा कुछ देगा, हैज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव ई सर्विस सेक्टर इन द इंडो पैसिफिक रीजन, है ना, हमारा कहाँ चला गया भाई, हमारा भी तो बहुत प्रोडक्टिव ई सर्विस सेक्टर है। लेकिन ठीक है, अब जब ऐसे मान लो किसी क्वेश्चन में ऐसे देता है, तो ये ना अभी ये होता है टोन पकड़ना। मान लो ऐसे देता है किसी क्वेश्चन में कि सबसे ज़्यादा जो हमारा है, मोस्ट ऑफ आर डेट इज़ इन डॉलर्स, तो वो भी देखो गलत था, राइट। मोस्टली ये वाला ग्रेन उगता है इंडिया में, गलत होता है। तो ऐसे ही केसेस में आपको ये चीज़ पकड़नी होती है, एंड ये तो कंप्लीटली फैक्चुअल है, इसको गलत करना बहुत आसान है। सिंगल पार्टी का मल्टी पार्टी कर दो, मल्टी पार्टी का सिंगल पार्टी कर दो, तो ये गलत हो गया। आ गया आपका आंसर। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आरबीआई है, इकोनॉमी की सीरीज में पूरा करा चुका हूँ, ठीक है। नॉन फंजिबल टोकन, ये अभी भी कराया था मैंने इकोनॉमी की सीरीज में। दे एनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट्स, करेक्ट। They are unique cryptographic tokens that exist on a blockchain. They are unique cryptographic tokens that exist on a blockchain. तो ठीक है, ये वाला भी ठीक है। And they can be traded or exchanged at equivalency and therefore can be used as a medium of commercial transactions. तो नहीं, ट्रेड और एक्सचेंज हम इनको नहीं कर सकते, यही इनका नाम ही कह रहा है, नॉन फंजिबल। दे आर नॉन फंजिबल, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 1 and 2। बट एग्जामिनेशन हॉल में मैं इसको गलत करके आया, तभी मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि कुछ क्वेश्चन इतने सिंपल होंगे कि आपको बाहर आके लगेगा भाई तो क्या करके आया है, एंड इट्स ओके। लेकिन आपको बाकी क्वेश्चन इतने अच्छे से करने, पेपर में कम से कम ऐसे 70 क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ आज 70 क्वेश्चन, मजाक नहीं कर रहा हूँ, कम से कम 70 क्वेश्चन आएंगे जो बिल्कुल अप्रोचेबल होंगे अगर आप बिना प्रेशर के बैठ रहे हो। तो उन 70 में से भी अगर आप 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ गलत कराए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 70 से ज़्यादा ही क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, ठीक है। उनमें से भी अगर आप 10% क्वेश्चन में ब्लंडर कराए तो भी कोई बात नहीं, तब भी आपका जो स्कोर है वो 110 के पार आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। तो डरना नहीं है पेपर में, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है जो मैंने स्किप किया था, मार देना चाहिए था, यहाँ पे भी एज इट इज़ अप्लाई हो जाती है वाली जो ट्रिक है, यहाँ पे भी ओनली 2 या ओनली 3 में से ये आंसर होगा। तो देखो सबसे देख रहे हो ना, नहीं पता था मुझे, फिर भी मैंने ओनली 1 and ओनली 4 तो काट दिया, क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी तो कुछ है ही नहीं होने की, क्लोज टू 0 है, बहुत ही कम एटलीस्ट, और कुछ भी नहीं। तो ऊपर से बोल रहा है अब आवर नॉट करेक्टली मैच्ड, मतलब पहले में
करेक्ट ही पूछ लेता, नोट करेक्ट पूछ रहा है, तो मेरे को टफ लगा, ये मैंने स्किप कर दिया. सो दिस वॉज द सेकंड क्वेश्चन दैट आई स्किप्ड. तो 70 क्वेश्चंस खत्म होने पे कितना हो गया, कितने ठीक है अभी तक, 45 ठीक है, 23 गलत है. 45, 23 एंड 2 अभी तक ये चल रहा है. In India, which one of the following compiles information on industrial disputes, closures, retrenchment and layoff in factories employing workers? तो देख रहे हो मैंने मार्क भी कर रखे हैं वर्ड्स, इसीलिए कहता हूँ पेपर जितना ध्यान से पढ़ोगे ना उतना अच्छा स्कोर करके आओगे. मैंने मार्क भी कर रखा है कि ये कौन से वर्ड्स पे फोकस कर रहा है, वर्कर्स के बारे में फोकस कर रहा है ना, और उनके ले ऑफ्स तक की भी बात कर रहा है. तो कौन संभालेगा, अगर आप वर्कर्स को ले ऑफ करने वाले हो तो कौन संभालेगा, या कौन उसका डेटा कंपाइल करेगा, कौन इस पूरी की पूरी चीज़ को संभालेगा? ऑब्वियसली एक ही बॉडी है, राइट. सो यहाँ पे आपका आंसर हो गया लेबर ब्यूरो. चलो नेक्स्ट देखो, इन इंडिया विच इज़ द व्हाट इज़ द रोल ऑफ द कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन. अब देखो ये भी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल. कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन इज द मेजर सोर्स ऑफ कोल स्टैटिस्टिक्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, मेजर लिखा है बस. इन इट मॉनिटर्स प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैप्टिव कोल और लिग्नाइट ब्लॉक्स. ये इसके बारे में बता रखा है कि कौन है ये, और ये दे रखा है कि ये क्या काम करती है. ठीक लग रहा है. इट हियर्स एनी ऑब्जेक्शन टू द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ कोल बेरिंग एरियाज. ये इसका दूसरा फंक्शन बता रखा है. इट एंश्योर्स दैट कोल माइनिंग कंपनीज डिलीवर द कोल टू एंड यूजर्स इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम. मैंने इसमें आपको क्या समझाया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन का इशू होगा, है ना, ये जो इम्प्लीमेंटेशन इशू है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, और मैं आपको ये 2-3 क्वेश्चन में समझा भी चुका हूँ. जो मुझे अभी याद है वो वेस्ट वाला क्वेश्चन है. द वेस्ट जनरेटेड इन अ डिस्ट्रिक्ट शैल नॉट गो टू अनदर डिस्ट्रिक्ट. ऐसे करके था ना एक स्टेटमेंट, तो मैंने समझाया था कि ऐसे 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 करके मान लो 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कैसे इंश्योर करोगे कि वेस्ट जो है वो जा नहीं रहा है. तो ऐसे स्टेटमेंट्स में क्या है, इंप्लीमेंटेशन का इशू है. वैसे भी 1 2 3 4 देखो ऑप्शन में नहीं है, 1 2 3 आपको सिंपली समझ में आ ही गया है, तो आप इसके साथ चले जाओ. ओके. इफ अ पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट. तो ये बार बार 5th शेड्यूल से क्वेश्चन आता ही है, ये ट्राइबल पीपल वाला क्वेश्चन है. ठीक है, एंड दिस इज योर आंसर इटसेल्फ. ये देखो मैंने यहाँ पे निकाला भी है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम वाला लगा के कि अच्छा ऐसे क्या आ रहा है, शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड ट्राइब, तो ठीक है फिर ये वाला होगा. फिर ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, सेल्फ गवर्निंग बॉडी, तो ये कौन से में आएगा, अच्छा चलो ठीक है 6th में आएगा. तो ऐसे करके आपको ध्यान से निकालना है. पहले दोनों काट दो क्योंकि इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है. फिर आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा ठीक है सेल्फ गवर्निंग बॉडी किसकी बात कर रहा है, लेकिन ये कहाँ होती है, 6th शेड्यूल में होती है कि 5th में होती है, एंड देन यू फिगर आउट योर आंसर विल बी ए. तो अगर आप ध्यान से क्वेश्चन सोल्व करोगे तो कुछ ये जो सिली मिस्टेक्स हैं ये ऐसी आपकी बच जाएंगी. The Indian Sanitation Council is a platform to promote sustainable sanitation and is funded by Government of India and World Health Organization. तो ये कौन सी ट्रिक है, ला 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 वे वाली ट्रिक है, गलत. ये सेकंड आपका ठीक हो जाएगा. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स इज एन एपेक्स बॉडी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्रोवाइड्स इनोवेटिव सॉल्यूशन टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ अर्बन इंडिया. अब सेकंड में वैसे मिनिस्ट्री है, बट मैंने क्यों इसको ठीक किया, क्योंकि वही मुझे धीरे धीरे ये समझ में आ गया है कि जब एक स्टेटमेंट इस तरीके का दे देता है जहाँ पे ऐसा कुछ गलत करवा रहा है, 2 ऑर्गेनाइजेशन गलत करवा रहा है, फिर अगर एक दे भी रहा है तो इसको शायद ठीक करा देगा. तो दिस वॉज द रिस्क एंड अंडरस्टैंडिंग दैट आई टुक विद माई सेल्फ इन द एग्जामिनेशन होल. और मैंने इस वाले स्टेटमेंट को ठीक मारा क्योंकि इसने यहाँ पे बताया भी कि भाई ठीक है ये इनोवेटिव सॉल्यूशन देता है एड्रेस करने के लिए अर्बन इंडिया के चैलेंजेस को, बट माई गट फीलिंग सेड कि हाँ इस पर्टिकुलर केस में ये जो है ठीक होना चाहिए, एंड ये जो फर्स्ट है ये गलत होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे तो 2 बॉडी आ ही गई हैं. तो ये गलत हुआ, ये ठीक हुआ, एंड आई रीच टू माई आंसर. ओके, तो आगे के लिए ये चीज़ ध्यान रखना आप लोगों की, 2 बॉडी वाला गलत होना है, और 2 बॉडी के साथ अगर कोई एक सिंगल आ जाती है तो वो ठीक हो जाता है. ये मैंने शायद एक जगह पहले भी 2000 कौन से तो पेपर में करवाया है एक ऐसा क्वेश्चन, अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रहा एग्जैक्टली. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज पर EPA 1986. रिपीटेड क्वेश्चन है PYQ से, ये वो वाला क्वेश्चन है ये जिसमें सबसे पहले स्टेटमेंट में था कि 36% जो डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं वो ओवर एक्सप्लॉइटेड हैं, ऐसा कुछ करके एक क्वेश्चन था CP इसकी CGWA के बारे में. तो वहीं से रिपीटेड एज इट इज़ PYQ है, और यहीं पे UPSC ने गेम किया है, एक जगह बोर्ड दी, एक जगह अथॉरिटी दी है, तो आंसर तो इन्हीं में से होना है. बस आपको एट दी एंड ये पता होना चाहिए था PYQ से कि जो EPA 1986 के अंतर्गत है वो अथॉरिटी आई थी, और यहीं से आप क्या करके ले जाओगे, इसे ठीक करके ले जाओगे. ठीक है, सो यू गेट योर आंसर एज C. विद रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल कमिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इट इज़ अ कमिटी सेट अप बाय द UN Security Council and works under its supervision. It traditionally meets in March, June and September every year. It assesses credential of all UN members before submitting a report to the General Assembly for approval. ओके, अभी यहाँ से क्या समझ में आया मुझे कि चलो ठीक है, इसने क्या बोला है कि एक कमिटी है UNSC के अंतर्गत, तो एक तो यहाँ पे आ गई बॉडी, वर्क्स अंडर इट्स सुपरविजन. ये कर रहा है ये फालतू की बात, क्योंकि अगर कोई बॉडी इसके अंदर है तो इसी के सुपरविजन के अंडर काम करेगी. तो ये जो यहाँ पे एक्स्ट्रा दे रहा है, देखो यहाँ पे जब इसने एक्स्ट्रा अटैच किया तो ये इसका फंक्शन समझा रहा है, ये नेसेसरी है समझाना, राइट. ये एक फंक्शन है जो समझाना नेसेसरी है. यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं समझा रहा, वर्क्स अंडर इट्स सुपरविजन. अरे जब उसके अंदर है तो उसके अंदर ही काम करेगी ना,
तो ये क्या है, ये ज़बरदस्ती का कंकैटिनेशन है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? यही अंडरस्टैंडिंग बस बिल्ड करनी है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो ये तो मुझे समझ में आ रहा था कि यार ये वाला तो होना चाहिए गलत, ठीक है, और ये गलत होना चाहिए, तो UNGA वाला होना चाहिए ठीक, क्योंकि UNSC के अंडर नहीं है तो चलो UNGA के अंडर होगा। तो फर्स्ट गलत होना चाहिए और थर्ड होना चाहिए ठीक। तो फर्स्ट को गलत किया और थर्ड तो खुद ही दिख रहा है कि ठीक है। फिर लास्ट देखो, इट ट्रेडिशनली मीट्स इन मार्च, जून एंड सेप्टेम्बर एवरी ईयर, ठीक है। तो देखो अब समझो कैसे क्वेश्चन सोल्व होते हैं। एक बॉडी है वो जनवरी फरवरी के बाद मिली मार्च में, अप्रैल मई के बाद मिली जून में, जुलाई अगस्त के बाद मिली सितंबर में, तो अक्टूबर नवंबर के बाद कब मिलेगी? दिसंबर में मिलेगी ना। मतलब क्या है, एक क्वार्टर में एक बार मिल रही है। समझ में आ रही है बात? तो भाई तूने फिर यहाँ से दिसंबर क्यों स्किप किया? तो मैंने वो दिसंबर यहाँ पे लिख रखा है, देखोगे अगर आप तो दिस इज़ अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो सेकंड भी आपका इनकरेक्ट हो गया, ये खत्म हो गया, आंसर आ गया आपका 3 ओनली। बात समझ में आई? चलें आगे। 2, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसमें 2 चीज़ों पे पता नहीं क्यों मार्क कर रखा है, तो इसलिए मैंने ट्रांसपेरेंसी के लिए कि एटलीस्ट खुद से ऑनेस्ट रहूँ, इसलिए मैंने इसको फिलहाल के लिए नेगेटिव काउंट किया है। बट आई एम प्रीटी श्योर कि मेरा ये ठीक हुआ होगा, क्योंकि मैंने इसको काटने के बाद ये दिसंबर के हिसाब से इसे कट डाउन किया होगा। एंड द फाइनल आंसर इज 3 ओनली। बट स्टिल चलो ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, अब तो हो गया प्रीलिम्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द पोलर कोड? ये एक इंटरनेशनल कोड है फॉर सेफ्टी ऑफ पोलर वाटर। अब मुझे इसी के साथ चले जाना चाहिए था, पोलर एंड कोड, क्योंकि मैंने खुद ही चीज़ पढ़ाई है आप लोगों को। जब मैं आज आपको दिन में बोल रहा था ना कि खुद करने के बावजूद भी गलती हो जाती है, तो मैं ऐसी गलतियों की बात कर रहा हूँ। ये चीज़ मैंने खुद पढ़ाई है कि वर्ड एसोसिएशन करो, पोलर दे रखा है, कोड दे रखा है, ऑलरेडी इसमें आ गया है पोलर कोड, तो मार के ख़त्म करो, और कहीं भी नहीं है ये, तो ज़्यादा क्यों सोचना है। फिर जब आपने पढ़ा नहीं है तो वर्ड एसोसिएशन करके मार दो। लेकिन नहीं, मैंने ज़्यादा दिमाग लगा और मैं C मार्क कराया, जबकि मार्क करना चाहिए था यहाँ पे A, ठीक है। R2 वाला याद है, उसी से कह रहा हूँ, वैसे ही कह रहा हूँ, ये भी वैसा ही है। ब्लू कार्बन याद है, कार्बन फर्टिलाइजेशन याद है। तो ये सब में क्या था, वर्ड एसोसिएशन करो और आंसर निकाल के खत्म करो। With reference to United Nations General Assembly, consider the following statement. It can grant observer status to non-member states. It can seek observer. Intergovernmental organization can seek observer status in UNGA. Permanent observer in the UNGA can maintain mission at UN headquarters. अब देखो ये तीनों क्या हैं, बहुत ही आराम से दिए गए स्टेटमेंट्स हैं, कुछ भी एक्सट्रीम नहीं है। कैन ग्रांट, कैन सीक, कैन मेंटेन, बहुत ही सिंपल से दिए हुए हैं, कुछ भी एक्सट्रीम नहीं है। सो आई वेंट विद ऑल ऑफ दी अबव एंड ये हो गया मेरा करेक्ट। With reference to tea board in India, consider the following statements. The tea board is a statutory body. It is regulatory body attached to Ministry of Agriculture. Ministry आ गई, काट दो। The tea board's head office is situated in Bangalore, काट दो। The board has overseas offices in Delhi and Moscow. अब देखो, आप मुझे एक बात बताओ, सोचो, बहुत सिंपल सा सोचो, ठीक है। सारा का सारा गेम कॉमन सेंस का है, ध्यान से सुनना, पे अटेंशन यार, सब छोड़ो अभी कमेंट्स, यहाँ ध्यान से सुनो। क्या है? द बोर्ड हैज़ ओवरसीज ऑफिसेज एट दुबई एंड मॉस्को। द टी बोर्ड्स हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन बैंगलोर। आप एक कंपनी सोचो, ठीक है, जिसकी बहुत सारे ऑफिस हैं, बहुत सारा सब कुछ है, ठीक है, लेकिन उसका हेडक्वार्टर किसी एक ही सिटी में है। तो उसका हेडक्वार्टर के बारे में अगर आपको स्टेटमेंट बनाना है, वो गलत बनाना आसान है, या फिर उसके इतनी सारी सिटीज़ में जो ओवरसीज ऑफिस हैं उसके बारे में स्टेटमेंट बनाना मतलब गलत करना उसको आसान है। सपोज करो 25 सिटीज़ में ओवरसीज ऑफिस हैं, तो आपको 25 के 25 की लिस्ट देखनी पड़ेगी, फिर कोई ऐसी सिटी लेके आनी पड़ेगी जो इस 25 में ना हो, एंड तब उसको आंसर में डालना पड़ेगा। फिर एक दूसरी सिटी ऐसी लेके आनी पड़ेगी जो इस 25 में ना हो, तब उसको आंसर में डालना पड़ेगा, तब जाके आप इस स्टेटमेंट को गलत बना पाओगे। जबकि इसमें आपको क्या करना है, बस बैंगलोर, यहाँ क्या पता दिल्ली होता, यहाँ क्या पता चेन्नई होता, यहाँ क्या पता कुछ और होता, इसको काट के बस बैंगलोर लिख दिया। इसको करना कितना सिंपल है, क्योंकि आप एक ही हेड ऑफिस है, उसी को चेंज करना है। ये होता है कॉमन सेंस अप्लाई करना एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के। तो लोग कहते हैं ना जब कि कैसे फिगर आउट करें, कौन सी ट्रिक लगेगी, तो कॉमन सेंस से फिगर आउट करो, रटो मत, कॉमन सेंस लगाओ। तो इसको काटा, आंसर आ गया। ये देखो 1 और 4 पहले लिख रखा है मैंने कि 4 में से 2 ही आंसर होंगे, तो यानी कि 2 मुझे ऊपर काटने, सबसे जो 2 आसानी से कट जाए वो देख लो। आई बात समझ? चलें आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट। अब देखो यहाँ पे अगर सिर्फ एक ही दिया होता ना तो मैं इसको भी काट देता, अगर सिर्फ एक ही आंसर होता तो मैं इसको भी काट देता, लेकिन इसको नहीं काटता क्योंकि ये सबसे सिंपल स्टेटमेंट है। किसी को ओवरसीज ऑफिस कहीं होना, बहुत सारी सिटीज़ में ओवरसीज ऑफिस हो सकता है यार। मैं आप एक बात बताऊँ, मैं आपको ऐसे बोलूँ, गूगल हैज़ हेडक्वार्टर इन दिल्ली, गूगल मेन हेडक्वार्टर इज़ इन दिल्ली, और दूसरे स्टेटमेंट बोलूँ गूगल ओवरसीज ऑफिस इज़ इन दुबई एंड मैक्सिको, या दुबई एंड कुआलालंपुर। आप मुझे बताओ आपको कौन सा आसानी से गलत करोगे? दिल्ली वाले करोगे ना, क्योंकि आपको पता है कि मैं शायद उसका क्या पता न्यूयॉर्क में हो या कहाँ हो, सैन फ्रांसिस्को में, उसका काट के मैंने दिल्ली कर दिया। कितना आसान है मेरे लिए। लेकिन जब मुझे वो ओवरसीज ऑफिस गलत करवाना था तो मुझे पूरी की पूरी लिस्ट देखनी पड़ेगी गूगल के ओवरसीज ऑफिस की, तब जाके वो गलत करवाना पड़ेगा। ऑलवेज रिमेंबर दीज थिंग्स।
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ठीक होते हैं हमेशा। सो ये करेक्ट हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म ग्रीन वॉशिंग। ठीक है, तो ये अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं बाकी सब चीज़ आपको मिलती चली जाएंगी। नॉन इंक्लूजन ऑफ इकोलॉजिकल एनवायरमेंट कॉस्ट इन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये तो वही है जब हम बजट को ग्रीन बजट बनाए, है ना। जब हम ग्रीन बजटिंग की बात करते हैं तो उसमें ये काउंट होता है। इग्नोरिंग द डिजास्टर इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज वाइल अंडरटेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बेसिकली कुछ नहीं है, इसको मैंने वापस से वर्ड एसोसिएशन किया, ग्रीन है और वॉशिंग है। तो मतलब आप ग्रीन कुछ है लेकिन उसमें वॉशिंग मतलब एक्चुअल नहीं है वो, आपने बस ऐसे ग्रीन वॉश कर दिया, जैसे ब्रेन वॉश कहते हैं ना, ब्रेन वॉश कर दिया। वैसे सोचो ब्रेन वॉश करने में क्या करते हैं आप, सोचो ऐसे दिमाग लगता है पेपर में, कोई नहीं पढ़ के जा रहा घर से ग्रीन वॉशिंग। सोचो ब्रेन वॉश करने में क्या करते हो, किसी को फॉल्स इंप्रेशन देते हो कि नहीं 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 इस चीज़ के नाम पे ये चीज़ कर जा, है ना, गलत गलत चीज़ों को पढ़ाते हो, गलत गलत इंप्रेशन देते हो। सेम चीज़ ग्रीन वॉशिंग है, कन्वेइंग अ फॉल्स इंप्रेशन दैट अ कंपनीज प्रोडक्ट आर इको फ्रेंडली एंड एनवायरमेंटली साउंड। यही तो करते हैं हम भी ब्रेन वॉश करने में, है ना। वी गिव अ फॉल्स इंप्रेशन दैट कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन, इसके जो चीज़ें हैं ये तो अच्छी अच्छी हैं, या फिर यही एक लोती है जो ठीक है, या इस पर्टिकुलर रिलीजन की चीज़ें खराब है। यही तो करते हैं ब्रेन वॉश करने में। सेम चीज़ ग्रीन वॉश में कर रहे हैं, फॉल्स इंप्रेशन दे रहे हैं कि जो कंपनी के प्रोडक्ट हैं वो अच्छे अच्छे हैं, बस वो ग्रीन है। यही आपका आंसर हो गया एंड यू आर करेक्ट। हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट। हाई क्लाउड्स प्राइमरीली रिफ्लेक्ट द रेडिएशन एंड कूल द सरफेस, लो क्लाउड एब्जॉर्ब द रेडिएशन एमिनेटिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस एंड वार्म कॉज द वार्मिंग इफेक्ट। अब मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बता भी चुका हूँ कि क्लाउड जो है वो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से डाल ही देता है, एटलीस्ट हर सेकंड ईयर तो डाल ही देता है, हर साल भी ना डाले तो इसमें इन्होंने क्या किया, कुछ नहीं किया, इंटरचेंज किया उठा के। कॉन्सेप्ट पूरा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देखो अपने खुद के लिए मैंने एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के फटाफट डायग्राम बना के देखा भी था, कौन सा जा रहा है कौन सा बाहर आ रहा है। ओके, सो इसमें नीदर है आपका आंसर, ये भी हो गया करेक्ट। अब देखो ये क्वेश्चन देखो कितना आसान है, बिल्कुल इजी। नाम कभी भी नहीं सुना होगा बीडी बीडी, फिर भी करके आओगे। बीडी बीडी इज अ लार्ज रेफ्यूजी सेटलमेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न केनिया। ओके, सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम साउथ सुडान सिविल वॉर लाइन लिव इन बीडी बीडी। कुछ लोग साउथ सुडान में सिविल वॉर हो रहा था वहां से भागे और आज बीडी बीडी में रहते हैं। अरे यार, सबके बीडी बीडी में जाके आधार कार्ड चेक किए क्या एग्जामिनर ने, कि वो ये कंफर्म बता देगा कि एक भी इंसान जो साउथ सुडान से भागा था वो बीडी बीडी में नहीं रहता। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम सिविल वॉर इन सोमालिया लिव इन डडाब रिफ्यूजी कॉम्प्लेक्स इन केनिया। कुछ लोग जो सोमालिया के सिविल वॉर से भागे थे वो डडाब में रहते हैं। बताओ आप मुझे, जाके सबके आधार कार्ड चेक हो रहे हैं क्या डडाब में? नहीं चेक हो रहे ना, तो फिर क्यों गलत करोगे इन्हें? बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर कंप्लीटली करेक्ट। और इसको गलत करना कितना, अब देखो ऑल थ्री तो नहीं है, इसको गलत करने में क्या है, तो केनिया गलत कर दो, नॉर्थ ईस्ट कर दो, साउथ वेस्ट कर दो, कुछ भी कर दो, कितना आसान है गलत करना। एंड यहाँ पे देखो सम पीपल यही मैंने मार्क कर रखा है एंड योर आंसर इज 2 and 3। आगे 2 नंबर घर में। अगला देखो, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट की है। फैक्चुअल क्वेश्चन आया, मैं गलत करा गया, हालांकि ये मेरे को ठीक कर देना चाहिए था। आर्मेनिया और अजरबैजान जो है वो आपस में दोस्त नहीं है, तो ये एक साथ जो है वो नहीं बैठे होंगे, बट मैंने एग्जामिनेशन हॉल में इतना दिमाग लगाया नहीं, लगाना चाहिए था, लगा देता तो मैं इसको करेक्ट करा था। यानी कि 1 and 2 एक साथ नहीं होंगे, तो सबसे पहले मैं ये काटता, फिर 1 और 2 में से कोई एक ना एक तो होना चाहिए, ये भी बात पक्की है, तो मैं ये काटता, तो फिर इन दोनों में से आंसर आ जाता। फिर मुझे बस 3 या 5 फिगर आउट करना पड़ता कि इसमें से टर्किक स्टेट में क्या है। देख लो ऐसे एग्जामिनेशन हॉल में होता है। अब मैंने गलती कर दी, आप मत करना, राइट। तो आप या तो अब क्रोएशिया या उज्बेकिस्तान, इसी पे पूरा का पूरा आके टिक जाता। उज्बेकिस्तान जो है वो अगर आपको पता है तो आप आंसर सी मार्क करके आ जाओगे। आई बात समझ? गुजरात हैज़ द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया, केरला हैज़, ये तो मुझे सब पता ही नहीं था, तो ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन था, मैंने सोचा मारा, गलत हो गया, एंड इट्स ओके। कुछ क्वेश्चन जब आप एग्रेसिव खेल रहे होते हो तो कुछ क्वेश्चंस में आउट होने के चांसेस रहेंगे, एंड दैट्स कंप्लीटली ओके। ठीक है, यहाँ पे भी देखो मैंने थर्ड काटा था और थर्ड एक्चुअली में गलत था, और ये भी मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉमन सेंस से काटा। मुझे कुछ पता नहीं था कि ये कहाँ लगाया, इसने कहाँ नहीं लगाया। अब मुझे पता है कि चलो ठीक है आंध्रा में है, लेकिन मुझे पहले नहीं पता था ये। सो ये मैंने अपनी कॉमन सेंस से काटा, कॉमन सेंस से काट के भी मैं एटलीस्ट यहाँ तक तो आया, 2 तक तो आया। उसमें मैंने चलो इसके साथ गया, मैं अगर इसके साथ चला जाता तो यहीं के 2 नंबर हो जाते मेरे, बट चलो कोई बात नहीं, इनकरेक्ट हो गया, इट्स ओके। चलो अगला देखो, यूएन क्लोज के बारे में क्वेश्चन है। अ कोस्टल स्टेट हैज़ द राइट टू एस्टैब्लिश द ब्रेड्थ ऑफ इट्स टेरिटोरियल सी अप टू लिमिट नॉट एक्सीडिंग 12 नॉटिकल माइल्स मेजर्ड फ्रॉम बेस लाइन। शिप ऑफ ऑल स्टेट्स वेदर coastal or landlocked enjoy the right of innocent passage. The exclusive economic zone, the EEZ exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles from the baseline under which the breadth of the territorial sea is measured. अब मैंने बनाया भी ये, पर मुझे लगा कि नहीं ये वाला जो है ना, ये जो यहाँ से बोल रहा है कि बेस लाइन से कैलकुलेट करना है, मुझे लगा कि ये गलत होगा, बट नहीं ये भी ठीक है। सो इस पर्टिकुलर केस में आपका आंसर 1 2 3 हो जाना चाहिए था, बट आई वेंट विद 1 and 2 एंड आई गॉट इट इनकरेक्ट।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द इशू विद सेंकाकू आइलैंड। तो सेंकाकू आइलैंड में क्या चल रहा है, ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है, सारी दुनिया को पता है, चाइना जापान जो है वो आपस में लड़ते रहते हैं, ये वही आपके साउथ चाइना सी वाले आइलैंड्स हैं, ठीक है। फिर ये वाला क्वेश्चन मैंने स्किप किया था, आई डिडंट मार्क इट, क्योंकि अगेन पढ़ा हुआ नहीं था, बट फिर से वही है, ओनली 2, अगर ओनली 2 ओनली 3 में से एक मुझे मार देना चाहिए था, ऐसी चीज़ों में रिस्क ले लेना चाहिए, मार देता ना मैं ठीक ही हो जाता, पक्की बात है। सो आई शुड हैव गॉन फॉर इट। इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे आंसर अगेन ओनली 3 था, तो मैंने ओनली 1 ओनली 2 4 तो काट दिया था, इन दोनों में से आंसर मार्क करना था, कर देना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन विद इट। तो ये मेरा थर्ड क्वेश्चन है जो मैंने स्किप किया। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ये एज इट इज़ रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, मैंने आज ही सुबह पढ़ाया था आपको। ये यहाँ पे ये जो कैटेलोनिया है ये स्पेन है, एज इट इज़ रिपीटेड है ये। अब देखो यही चीज़ मैं समझा रहा हूँ आपको, यही चीज़ मैं सिखा रहा हूँ इतने टाइम से। जब आपको ये पता चल गया कि जो कैटेलोनिया है वो स्पेन में है और स्पेन इसने ऊपर दे रखा है, तो इसका मतलब पक्की बात है इसने ये भी गलत दिया होगा, पक्की बात है इसने ये भी गलत दिया होगा। जो ये काबो डेलगाडो है ये कहीं ना कहीं और होगा 100%, चाहे इटली में हो चाहे ना हो, लेकिन यहाँ पे इसने स्पेन क्यों दिया, एक ही स्पेन की 2 जगह क्यों देगा, जब कैटेलोनिया दे दिया तो अब काबो डेलगाडो स्पेन में नहीं होगा, तो यानी कि ये दोनों गलत हैं, तो आंसर हो गया आपका ओनली 2 पेयर्स। तो सिर्फ आपको इस पूरे में कितना पता था, लोग कह रहे हैं कि ये वाले ज़्यादा टफ आ गए, नहीं आप दिमाग लगाओगे आपके सोल्व हो जाएंगे। सिर्फ मुझे कितना पता था कि जो कैटेलोनिया है वो स्पेन में है, ये भी क्यों पता था, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता था, इसी से मैं अपना आंसर ठीक करके आ गया और 2 मार्क घर लेके आ गया। With reference to Indian laws about wildlife protection, consider the following statements. Wildlife animals are the sole property of government. अब किसकी है, नहीं तो आप मार दोगे ना, अगर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं होगी तो आप तो उनको मार दोगे। तो वाइल्ड लाइफ किसकी प्रॉपर्टी है, वाइल्ड एनिमल्स किसकी प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। व्हेन अ वाइल्ड एनिमल इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड, सच एनिमल इज एंटाइटल्ड फॉर इक्वल प्रोटेक्शन वेदर इट इज फाउंड प्रोटेक्टेड एरियाज के बाहर या अंदर। हाँ बिल्कुल, ये थोड़ा ही है कि एलिफेंट जो नेशनल पार्क में आप बस उसे ही प्रोटेक्ट करोगे, जो बाहर है उसे भी तो करोगे यार, उसको थोड़ी मार दोगे। और लास्ट है, एप्रीहेंशन ऑफ अ प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल बिकमिंग अ डेंजर टू ह्यूमन लाइफ इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इट्स कैप्चर और किलिंग। जस्ट एप्रीहेंशन कि वो बिकम हो रहा है, इट इज बिकमिंग डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, नहीं सिर्फ एप्रीहेंशन के बेसिस पे थोड़ी मार दोगे यार। सफिशिएंट ग्राउंड फॉर किलिंग, कोई भी वाइल्ड एनिमल अगर उसका बस एप्रीहेंशन हो रहा है, नहीं भाई जब तक एटलीस्ट आप देख नहीं लेते कि अटैक कर रहा है, क्या हो रहा है, दिक्कत कर रहा है, तो सिर्फ एप्रीहेंशन के बेसिस पे थोड़ी मार दोगे आप जानवरों को। सो थर्ड काटा और देखो वापस से वही था ना, अब इसमें मैं 1 और 2 के साथ गया और ये मेरा करेक्ट हो गया। सर्टेन स्पीशीज़, ये मैंने एज तुक्का मारा था, मारना नहीं चाहिए था, इसको स्किप करना चाहिए था, यहाँ पे मेरा गलत हो गया। सो वंस वी आर डन विद 90, तो अगर मैं उन दोनों को जो मेरे को ठीक लग रहे हैं उनको भी काट दूँ तो भी 58, 29 एंड 3 ये अभी तक स्कोर चल रहा है। ठीक है, अब लास्ट के 10 क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये देखो धोली, ओडिशा, इरागोडी, ये वापस से वही। सबसे पहले मैंने ओनली 1 और ओनली 4 काटा। अब मुझे थोड़ा सा जिन चीज़ों का आइडिया था वो क्या था, ये धोली वगैरह का आइडिया तो रहता है, जब आप पढ़ते हो आपको इतना आइडिया रहता है, तो इसके बेसिस पे आई वेंट विद ओनली 2 पेयर्स और ये मेरा ठीक हो गया। इसके नेक्स्ट में भी मैंने यही किया, मुझे भोज प्रत्याहार वाला याद था कि जो भोज हैं वो तो प्रत्याहार हैं, यही बोलते हैं ना कि पूरा नाम ही यही है भोज प्रत्याहार, तो ये गुजर प्रत्याहार के होंगे, तो ये इसके साथ जाना चाहिए, राइट, तो इसके साथ जाना चाहिए, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म। जैसे मैंने स्पेन वाले में समझाया, तो यहाँ पे ओनली 2 और ये भी ठीक हो गया। तो यहाँ पे आते आते 60 क्वेश्चंस फाइनली एटलीस्ट मेरे ठीक हो गए हैं, 60-62 हो गए यहाँ तक ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट संगम लिटरेचर इन एंशिएंट साउथ इंडिया इज करेक्ट। अब देखो आपको कुछ नहीं पता इसके बारे में, आपको हिस्ट्री बहुत टफ लग रही है, लेकिन मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। संगम पोएम्स आर डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर, मतलब मैंने सारी जो इतना बड़ा संगम लिटरेचर है, हज़ारों पन्नों का, मैंने वो सारी पढ़ दिया आज रात बैठ के कि मेरे को कल सुबह क्वेश्चन बनाना है, और उसमें कहीं मटेरियल कल्चर की बात नहीं हुई है। कैसी स्टूपिड चीज़ है ये, इसको क्यों ठीक मारोगे आप, नहीं गलत है बिल्कुल। ठीक है, ये देखो ये वाला स्टेटमेंट देखो, संगम पोएम्स हैव नो रेफरेंस टू वॉरियर एथिक। अगेन मैंने पूरा पढ़ दिया, लेकिन मुझे कहीं ऐसा नहीं मिला कि वॉरियर एथिक के बारे में संगम पोएम ने ज़रा सी बात करी हो। संगम लिटरेचर रेफर्स टू मैजिकल फोर्सेज एज इरेशनल। ठीक है, ये हो सकता है, चलो ठीक है। तो एटलीस्ट मैंने क्या गलत काट दिए, ये देखो मैंने गलत भी वही काटे हैं, ए गलत काटा, सी गलत काटा। अब ये पढ़ो, द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ण वॉज नोन टू संगम पोइट्स। देख रहे हो ये कितना सिंपल स्टेटमेंट है, वॉज नोन, मतलब ये नहीं कह रहा कि उन्होंने भर दिया उसमें, उन्होंने बहुत ज़्यादा उसके बारे में लिखा है, उन्होंने उसको गलत बताया, उन्होंने उसको सही बताया है, बस कह रहा है कि उनको पता था, मतलब कहीं बेसिक रेफरेंस आता होगा। अब जाओ वापस देशेर कथा पे, एज इट इज अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जाओ वापस जब मैंने कौटिल्य का अर्थशास्त्र बताया था एज इट इज अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जाओ वापस न्यूनीज वाले क्वेश्चन पे 2021 के, एज इट इज अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जस्ट हल्का सा रेफरेंस, जस्ट हल्का सा पता होना भी सफिशिएंट ग्राउंड है फॉर मार्किंग दिस करेक्ट, दिस इज अ राइट स्टेटमेंट। आगे बात समझ में, और ये करेक्ट हो गया।
योग वशिष्ठ वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाई निजामुद्दीन पानीपति ड्यूरिंग द रेन ऑफ। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया। वैसे हालांकि थोड़ा आइडिया रहता है कि जो बुक्स वगैरह हैं, लिटरेचर है, जो ट्रांसलेट किसने कराई है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि आप बेसिक जान के रखोगे। अकबर ने क्या किया? लिटरेचर ट्रांसलेट कराई। शाहजहाँ ने क्या किया? आर्किटेक्चर बनवाए। जहांगीर ने क्या किया? पेंटिंग पे ध्यान दिया। और हुमायूं ने बेचारे ने सिर्फ अपनी जान बचाई सारी ज़िंदगी। ठीक है, ये बेसिक आइडिया रहता है, इसी के बेसिस पे आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन जस्ट टू मेक श्योर एग्जामिनेशन हॉल में मैंने क्या दिमाग लगाया, देखो आपके सामने है, आपको पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट मैं समझाता हूँ। देखो नॉर्मल सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले हुमायूं आया, फिर अकबर आया, फिर शाहजहाँ आया, फिर औरंगज़ेब आया। ठीक है, ये नॉर्मल सीक्वेंस है, मतलब इन चारों का। ठीक है, इसमें औरंगज़ेब भी ऐड कर लो, औरंगज़ेब ने मंदिर तोड़वाए, मतलब चलो खैर जो भी है। तो ये चार आपको याद है, सबसे पहले हुमायूं, अकबर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब। इस तरीके से आना चाहिए था, हुमायूं, शाहजहाँ, औरंगज़ेब। ये तो इसने ठीक दे रखा है, अकबर को उठा के ऊपर डाल दिया। क्यों भाई, इस लाइन से ही दे देता। तो देखो यही मैंने लिखा हुआ है कि इसने अकबर को ऊपर कर दिया है, करेक्ट। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में आपका जो है वो क्या हो गया, द आंसर इज अकबर। तो वैसे भी मैंने आपको जो बेसिक समझाया है, इसी के बेसिस पे आप हर साल एक क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। ओके, ये तो मैंने पढ़ाया है ये पूरा का पूरा पहले। द वर्ल्ड सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू इन सिटिंग पोज ऑफ रामानुज वॉज इनोग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट हैदराबाद रिसेंटली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली रिप्रेजेंट द टीचिंग्स ऑफ रामानुज। तो रामानुज जो थे उन्होंने क्या बताया कि भाई भक्ति मार्ग पे चलो तो आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, तो 2-3 चीज़ें मैं अपने चैनल पे लिख के डाल दूंगा आज कि किसका कौन सा वो था, मतलब शंकराचार्य ने क्या कौन सी फिलोसफी दी थी और वो क्या कहती थी। मुझे एक बार टैग कर देना, मैं बता दूंगा चैनल पे से, इस चीज़ को पढ़ लेना। इस साल भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि रामानुज शंकराचार्य दोबारा से न्यूज़ में रहे हैं, तो देर आर चांसेस, ऊपर से PYQ भी हो गया तो देर आर चांसेस कि इस पर क्वेश्चन आ जाए दोबारा से। ठीक है, मीमांसा क्या कहता है, शंकराचार्य क्या कहते हैं, द्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत, थोड़ा सा बेसिक पढ़ा दूंगा मैं इसका। ठीक है, तो ये हो गया मेरा आंसर करेक्ट। अभी देख रहे हो इस पेज पे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ अभी तक। तो होंगे ऐसे पेज भी होंगे जिस पे सब गलत होगा, और ऐसे पेज भी होंगे जिस पे सब ठीक होंगे। 59, 60, 61, 62, 63 और ये 64 भी यहीं पे आएगा। तो 6 के 6 क्वेश्चन जो इस पेज पे हैं वो ठीक हुए हैं। और ऐसे भी पेजेस आ सकते हैं जहाँ 4-5 जितने क्वेश्चन हैं वो सब गलत हो, बट अपने को घबराना नहीं है। जब तक हम वहाँ पेपर में हैं, जब तक एग्जाम हॉल में है, फ्रंट फुट पे खेलना है। प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली इनोग्रेट किया है सर्किट हाउस नियर द सोमनाथ टेम्पल एट वेरावल। इनमें से क्या बातें सोमनाथ टेम्पल के बारे में सही हैं? ये वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग है, वन ऑफ द दो बार इसी पेपर में दिखा दिया मैंने आपको ये कि ठीक होता है, 2 या 3 बार दिखा दिया है, करेक्ट। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ वॉज गिवन बाय एल्बुरिनो न्यूनिस का क्वेश्चन एज इट इज दिखा दिया मैंने वापस से, करेक्ट। प्राण प्रतिष्ठा ऑफ सोमनाथ टेम्पल वॉज डन बाय प्रेसिडेंट S राधाकृष्णन। ये देखो मैंने S राधाकृष्णन जी को क्रॉस किया और उनको गलत मारा है, क्योंकि पक्की बात है कि इसने तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक नहीं बनाए होंगे, इस स्टेटमेंट को पक्का गलत बनाया होगा 100%। इनसे पहले जो प्रेसिडेंट रहे हैं इंडिया के, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने किया होगा। 100% की बात है, ये पक्की बात है। चाहे मुझे एग्जामिनेशन हॉल में पता था नहीं पता था, बट इतना आपको समझ में आने लगेगा इफ यू विल बी डूइंग PYQs कि एग्जामिनर एक्चुअली में गलत कर कहाँ सकता है। यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को। क्लियर, ये पक्की बात है कि राजेंद्र प्रसाद जी ने किया होगा ये। सो द आंसर हियर इज 1 and 2 एंड आई गॉट इट करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ B सेल एंड T सेल? पूरा जो मैंने 5 दिन की पढ़ाई करी थी तब 4 दिन की 2 दिन की पढ़ाई करी थी, उसमें से ये एक क्वेश्चन आया, एक दोस्त ने पढ़ाया था और उसी में से एक क्वेश्चन आ गया और ये क्वेश्चन मेरा ठीक है। तो दिस वाज द ओनली क्वेश्चन, ओनली वन सिंगल क्वेश्चन जो मेरा उन 4 दिन की पढ़ाई में से आया था। ये उसने मुझे 365 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाया था कि भाई चल ठीक है कुछ तो पढ़ ले, और उसमें से क्वेश्चन आ गया और ये मेरा ठीक हो गया। सो दिस वॉज माई ओनली क्वेश्चन जो मैंने उन 4 दिन की नॉलेज से ठीक किया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, देख रहे हो ये अभी 7वां 8वां क्वेश्चन हो गया कॉन्सेक्यूटिवली ठीक। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमन नैनो पार्टिकल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। आगे एक्सट्रीम, नेचर में नैनो पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करते। नेचर में सारे पार्टिकल बड़े बड़े ही हैं, हमारे आके मुंह पे गिर रहे हैं, नैनो पार्टिकल कुछ है ही नहीं दुनिया में। क्या फालतू स्टेटमेंट है। नैनो पार्टिकल ऑफ सम मेटेलिक ऑक्साइड्स आर यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सम कॉस्मेटिक्स, करेक्ट। नैनो पार्टिकल ऑफ सम कमर्शियल प्रोडक्ट्स विच एंटर द एनवायरमेंट आर अनसेफ फॉर ह्यूमंस, करेक्ट। सम आंसर ठीक आपका, 2 नंबर लो, घर बैठो। नेक्स्ट देखो, DNA बारकोडिंग कैन बी अ टूल फॉर, अब मैं 1 2 3 तीनों मार देता लेकिन 1 2 3 है ही नहीं आंसर में। चलो ठीक है, अब मुझे ये समझ, देखो अब देखो, एसेस द एज ऑफ प्लांट और एनिमल, डिस्टिंग्विश अमंग स्पीसीज दैट लुक अलाइक, ये तो पता ही है हमें कि DNA से ये चीज़ हम कर सकते हैं। तो सेकंड के बारे में आई वॉज श्योर, तो मैंने ये दोनों काट दिए। अब ये आंसर बचते हैं, या तो है 1 करेक्ट या तो है 3rd करेक्ट। या तो ये एसेस करवाता है एज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, या फिर आइडेंटिफाई करता है अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल इन प्रोसेस्ड फूड। अब
मतलब मैं थोड़ा सा सोचता तो शायद इसको कर आता, लेकिन ये हल्का सा टफ था उस टाइम पे एग्जामिनेशन हॉल में, ऊपर से प्रेशर बना हुआ होता है कि एसेस द एज ऑफ प्लांट और एनिमल। अब मैंने लिखा भी कि ये कार्बन डेटिंग से हम करते हैं, पता नहीं डीएनए का इसमें यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं, जबकि अनडिजायरेबल एनिमल का जो है वो एक अलग डीएनए होगा, तो शायद ये आंसर हो। सोचा मैंने ये सब, लेकिन आखिर में आई मार्क्ड 1 and 2 एंड आई गॉट इट इनकरेक्ट। देन लास्ट क्वेश्चन ये है, कंसिडर द फॉलोइंग एक्सेस ऑफ, इनमें से किसका एक्सेस हो जाता है, तो एसिड रेन होती है, तो चारों तो है नहीं, ठीक है, तो हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, क्या ठीक कर सकते हैं। इनमें से किसका एक्सेस होने पे एसिड रेन होती है, राइट। तो मुझे एटलीस्ट इसमें क्या पता था कि जो ओजोन है वो सिर्फ हम तब पढ़ते हैं जब हम स्मोक की बात पढ़ते हैं कि ओजोन का एक्सेस हो जाता है, अगर ग्राउंड लेवल ओजोन का एक्सेस हो जाता है तो स्मोक क्रिएट होता है। एसिड रेन के टाइम पे हम ये नहीं पढ़ते। और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का मैं श्योर था, तो यहीं से पहले 3 काटा, और नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड का मैं श्योर ही था, उसमें कोई ऐसा ऑप्शन दे नहीं रखा 1 to 4, तो मैं आराम से इसको मार्क करके आया एंड आई गॉट इट करेक्ट।